না, একটুখানি আমরা ওয়েট করে যাব আর কিছু বন্ধু আসার জন্য, তারপরে আমি সোমনাথ স্যারকে আমি হ্যান্ড ওভার করবো। আহ, দীপক স্যারেরও আসার অপেক্ষা করছি। তো আমার মনে হয় উনিও ফিল্ডে রয়েছেন হয়তো এখনো পর্যন্ত, না হলে ওনাকে হ্যান্ড ওভার করে দিতাম। তো আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, এবং আজকে পুরানো বন্ধুদের পাশাপাশি আমরা প্রচুর হয়তো নতুন বন্ধুকেও পেতে চলেছি, আশা করছি সেটা। এবং নতুন পুরানো সবার জন্যই এই প্রেজেন্টেশন। কেন পুরানোদের জন্য? পুরানোদের কাছে এই একই প্রেজেন্টেশন হয়তো আবার রিপিট হতে পারে, কিন্তু একটা জিনিস জেনে নিন, আহ, একই স্পিকার যদি একই প্রেজেন্টেশনকে 10 বারও বলেন, তাহলে দেখবেন তার প্রতিটা প্রেজেন্টেশনই কিন্তু ডিফার করে যায়। প্রতিবারই তার বলার মধ্যে অনেক কিছু চেঞ্জেস থাকে, তার বলার মধ্যে অনেক বিভিন্ন উদাহরণ থাকে। এবং তিনি প্রতিদিন তার যে এক্সপিরিয়েন্স, ফিল্ডের যে এক্সপিরিয়েন্স, নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স, পজিটিভ এক্সপিরিয়েন্স, এই সমস্ত কিছু তার সেই প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ফুটে ওঠে। এবং আপনি যদি খুব মানে একজন স্টুডেন্ট হিসাবে আপনি শোনেন, কারণ ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি কোনো গেট রিচ মানে তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার কোনো রাস্তা নয়। ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি আর বাকি সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিতে মানুষ যেমন ফেলিওর হন, ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিও একই। যে কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে সাকসেস পেতে গেলে যেমন আপনাকে তৈরি হতে হবে, নিজের একদম পারফর্মার আপনাকে হতে হবে। যদি আপনি আজকের দিনের কম্পিটিশন অনুযায়ী সাকসেস পেতে চান, ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতেও একই আপনাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে। এবং সেখানে একটাই প্লাস পয়েন্ট ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, যেটা সব থেকে, যে কারণে আমরা সবাই এক্সাইটেড, আমরা সবাই ইন্টারেস্টেড এই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে। বিভিন্ন জন, বিভিন্ন পেশা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সত্ত্বেও আমরা এই যে এক্সাইটেড হয়ে থাকি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে, তার পেছনে কারণ যে এখানে আমরা প্রচুর বন্ধু পাই, এখানে আমরা একে অপরকে হাত ধরে টেনে তোলার মতো অনেক গাইড পাই, যেটা অন্যান্য ইন্ডাস্ট্রিতে পাওয়াটা খুব টাফ হয়ে পড়ে। এবং সেখান থেকে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে এটাই একটা সব থেকে বড় প্লাস পয়েন্ট আমি মনে করি, এবং সেই কারণের জন্যই ইন্ডাস্ট্রিকে আমার বেছে নেওয়া। আর বাকি বৃহস্পতিবারের আমাদের ট্রেনিং সেশন তো চলেই, সেই সময় বাকি আমাদের এই সমস্ত কথা আলোচনা হবে। তো আমি দীপক স্যারকে দেখলাম যে উনি অলরেডি এসে গেছেন। স্যার, দীপক স্যার, আপনি কি পৌঁছেছেন? যদি পৌঁছে থাকেন তাহলে সুনিতা ম্যাম, সুজিত স্যার, গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। দীপক স্যার, আপনি যদি আনমিউট হতে পারেন তাহলে আনমিউট হয়ে গেলে আপনাকে আমি হ্যান্ড ওভার করবো। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। মিস্টার দীপক দলুই স্যার, আপনি কি হাজার হাজার ওভার টু? আমি কি আপনাকে হ্যান্ড ওভার করতে পারি? একদম স্যার, একদম। ওকে। অ্যাকচুয়ালি দীপক স্যারের সঙ্গে একটু আগে কথা হলো, জাস্ট উনি জাস্ট 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 বাড়িতে ঢুকছেন আর কি, এই সন্ধ্যাবেলার এই রবিবারের ইভেন্ট। অ্যাকচুয়ালি আজকে লাস্টের দিকে আমি যেতেও নেবো যে এই আমাদের 7:30 জায়গায় যেহেতু আনলক প্রায়, তো অনেক লিডাররাই হয়তো ফিল্ডে থাকেন, তো 7:30 জায়গায় এটাকে আমরা যদি আরেকটু লেটে করি তাহলে অনেকের হয়তো সুবিধা হতে পারে। সেটা লাস্টে আমরা আলোচনা করে নেবো, বা বৃহস্পতিবার আলোচনা করে নেবো। তো ওভার টু দীপক স্যার, প্লিজ ওয়েলকাম। ওকে স্যার, ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তো ওয়েলকাম। আজকে আবার একটা নতুন একটা দিন আমাদের সবার কাছে। আশা করি সবাই উপস্থিত হয়ে গেছেন, এবং যারা এখনো পর্যন্ত অ্যাড হতে পারেননি, আজকে একটা দারুণ সেশন হতে চলেছে। এবং আমরা একজন তুখোড় স্পিকারকে পেয়েছি, যে স্পিকারের সম্বন্ধে যতটা বলবো ততটা কম বলা হবে। মানে আমার আমার দেখা, মানে আমি এটা বলতে পারি যে যারা যারা আজকে আহ, এই সেশনটা মানে মন থেকে নিতে পারবেন, একদম হৃদয় দিয়ে যদি নিতে পারেন, তাহলে কিন্তু তাদের লাইফটা তারা চেঞ্জ করতে পারে। যেটা লাস্ট 40 থেকে 45 মিনিট এই সেশনটা চলবে। আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব কি সবাই আহ, যা কিছু চিন্তা আছে বাইরে, সেটাকে ছেড়ে দিয়ে এই ফুল স্ক্রিনে আর কানে হেডফোন লাগিয়ে শুধু আপনি এটাকে ফোকাস দিয়ে শুনুন, এবং মাইন্ড পুরো খালি করে শুনুন। আমি আপনাদের এটা বলতে পারি যে সিরিয়াসলি 40 মিনিট পর আপনার মনে হবে বিশাল বড় একটা সুযোগ আমি পেলাম। কারণ সুযোগের কথা যদি এসে যায়, মানে যখন আমি স্কুল লাইফ শেষ করি, তখন হাতের সামনে যে কিছু একটা কাজ দরকার, ঠিক আছে, সেই মানে কাজ মিনস অপরচুনিটি দরকার ছিল। ছিল না কোনো জব বা কোনো বিজনেস, কিন্তু অপরচুনিটি দরকার ছিল যেখান থেকে আমি আমার স্বপ্নটা আমি পুরো করতে পারবো।
ঠিক আছে, সেই অপরচুনিটি আমার কাছে আসে এইরকম একজন সন্ধ্যাবেলায় আমাকে এরকম একটা অপরচুনিটি আমাকে শেয়ার করে, সেই থেকে আমি আমার লাইফটা চেঞ্জ করেছি। এবং যে স্পিকার আজকের দিনে আপনাদের সামনে শেয়ার করবেন, মার্ভেলাস স্পিকার, মানে ইজ দ্য গ্রেট ট্রেনার, গ্রেট মোটিভেটার, মানে একদম ওয়ার্ল্ড ফেমাস লিডার। আপনারা আপনাদের লাইফে যদি ওনার কথা শুনে যদি আপনাদের লাইফটা চেঞ্জ করতে পারেন, আপনারা শুধু ওটাকে শুনুন ওনাকে, আর আপনার লাইফে প্র্যাকটিক্যালি কাজে লাগান। উনি কি আপনাকে টিপস দিচ্ছে, সেই টিপসটা আপনি খালি শুনে আপনার লাইফে যদি কাজে লাগাতে পারেন, আপনার পুরো লাইফ চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না, আজকে আমাকে শোনার জন্য নয়, আজকে ওনাকে শোনার জন্য আমরা সবাই এক্সাইটেড হয়ে আছি। এবং সবাইকে আমি বলবো, সবাই একবার দারুণ ভাবে এক্সাইটমেন্টের সঙ্গে ওনাকে একবার জোরদার হাততালির সঙ্গে আমরা ওয়েলকাম করবো। একদম জবরদস্ত হাততালি, জোরদার ফাটিয়ে। ওকে, তো আর এক মুহূর্ত দেরি নয়, আমি সেই মানুষটাকে আপনাদের সামনে আনছি। প্লিজ হেল্প মি টু কাম অন দ্য মাইক স্যার, মিস্টার সোমনাথ স্যার, প্লিজ ওভার টু সোমনাথ স্যার। একবার জবরদস্ত হাততালি সোমনাথ স্যারের জন্য, জোরদার হাততালি, একদম ফাটিয়ে সবাই মিলে। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ওভার টু স্যার, ওভার টু স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এই ক্লাসটা কোন আগে, ওই ক্লাস আর হবে না। না না, ওই ক্লাস নাই, আলাদা এটা বিজনেস ক্লাস। স্যার নমস্কার। নমস্কার স্যার। নমস্কার নমস্কার। নমস্কার। একটু একটু গল্প করে নি, না হলে সাহস পাবো না, মারাত্মক নার্ভাস আছি। जब तक मतलब क्या होता है ना, इंजन जब तक गर्म नहीं होता तो वो उसको भगाओ मत, धीरे धीरे उसको थोड़ा नरम से गर्म कर लो, फिर उसमें चावल डाल दो और एक चावल दबा के देख लो कि भाई पूरा जो हंडी होता है उसमें पूरा चावल पक गया। एक ही चावल से पता चलेगा। तो शुभ संध्या, सभी को नमस्कार, दिल से प्यार भरा नमस्कार, और बहुत बहुत प्यार उस ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर को, जिन्होंने ये मौका दिया कि आज मैं कुछ बोल पाऊं। उनको भी कोटि कोटि नमन, जिन्होंने ये दुनिया दिखाया, मेरी माता पिता एवं सबके माता पिता की एक बार दिल भरा नमन, प्यार भरा। सो फ्रेंड्स, आज क्यों ये शाम हम लोग एक साथ बिताने वाले हैं, इसका एक बहुत जबरदस्त एक कारण है। कारण ये आपके स्क्रीन पे है कि हम जब कमा रहे हैं तो पैसा नहीं हम रख पा रहे हैं। आज हम किसी को अगर पूछते हैं कि भैया आप कैसे हो, भाभी आप कैसे हो, चाची आप कैसे हो, चाचा आप कैसे हो, बाबू आप कैसे हो, तो पहला ही उनका चेहरा आईने की तरफ आ रहा है और एक रोते हुए सुर पे कह रहे ठीक ठाक चल रहा है ऊपर वाले के दया से। तो मैंने उनसे जाके पूछा, भाई ऐसा क्यों आपका चल रहा है? क्योंकि मैंने अपने जीवन पे जो काम किया है उसी का फल मुझे मिल रहा है। कि मैंने जितना कमाया है वो मेरा सभी खर्चा हो चुका है, सेविंग्स बोल के कुछ नहीं है मेरे जीवन पे। तो आज हम एक रास्ता हम आपको बताने वाले हैं 15 से 20 मिनट में कि दोस्त, क्यों हम अपने खर्चे को अपना कमाई बना सकते हैं, कैसे हम अपने खर्चे को अपना कमाई बना सकते हैं, मतलब इनकम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे। तो ये कहने से पहले मुझे मेरे पिताजी का बात, मेरे दादाजी का चेहरा, मेरे दोस्तों के पिताजी का चेहरा हमेशा सामने आ जाता है। उसका कारण भी एक ही है, वो भी आज ही सोच रहे हैं कि मैंने 30 साल जो किया उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने बेटे को आज इतना पढ़ाई लिखाई करवाया, लेकिन उसका सर्टिफिकेट का आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अपने बच्चे को क्लास 10 तक पढ़वाया, आज उसका एग्जाम ही नहीं है। मैंने अपने बच्चे को स्कूल में पढ़वाया, भर्ती किया, 2 साल में ये पता चल गया कि स्कूल अभी घर पे है, सिर्फ मंथली बिल देने के लिए जाना पड़ता है, नहीं तो स्कूल घर पे है।
कितना कुछ हमें सीखने को मिला है। अब हमें ये पूछना है कि अभी से हम आने वाला 30 साल कैसे बिताएंगे। तो मैं पहले सभी को ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आज आप जो भी हो, आप जिस समय पे हो, जहां से आप जुड़े हो, पहले तो सभी को वेलकम। मेरा परिचय, मेरा नाम सोमनाथ, मैं हुगली चढ़ता हूं। और मैं सभी को ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों, आने वाला समय जो हम आपके साथ बिताने जा रहे हैं, प्लीज अपने हाथों को कष्ट मत दीजिएगा, स्क्रीन से हाथ हटा लीजिएगा, दिमाग को रखिएगा, हाथ को मत डालिएगा, दिमाग पूरा खाली रखें, स्क्रीन को डिस्टर्ब ना करें। आपके फैमिली के साथ आप बैठे यहाँ पे, और आपके मोबाइल आप घर पे जहां पे हो, अगर कोई बाइक चला रहे हो तो मैं उनको पहले रिक्वेस्ट करूं कि सर या तो आप कहीं रुक जाओ, नहीं तो आप यहां से निकल जाओ, क्योंकि एक जीवन हमें बहुत मूल्य माना जाता है। क्योंकि आप किसी के संतान हो, किसी के फैमिली मेंबर हो, किसी का हस्बैंड हो, बहुत वैल्यू रखता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसी वजह से आज का जो सेशन है मैं आपके साथ तभी शेयर कर पाऊंगा जब आप मुझे साथ दोगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स। तो आने वाला 20 से 25 मिनट हम साथ देंगे आपके साथ। दोस्तों, यहाँ पे हम बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, हमारे बहुत सारे गार्जियन यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे आज मुझे एक्सपीरियंस लोग सुन रहे हैं। शायद वो एक्स आर्मी मैन है, शायद वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, शायद हाउसवाइफ है, शायद एज अ टीचर है, और एज अ गार्जियन आप सभी मेरे सामने बैठे हो। तो मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने सीखा है मैं वही शेयर कर रहा हूं आपके लोगों के साथ। और शायद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 20 से 25 मिनट जो आप मेरे साथ बिताने वाले हो, आपके लाइफ को एक आईने की तरह मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्यों आपका जीवन मूल्यवान है, क्यों अभी आपका सोच बहुत मूल्यवान है, क्यों आज की डेट में आप अपने इनकम, मतलब आपके खर्चे को आप इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि आप जहां से कमा रहे हो, आप जहां कहीं से कमा सकते हो, उसे छोड़ना नहीं है, उसे साथ रखना है। और जो खर्चा आपका आज है उसे भी घटाना नहीं है, कंप्रोमाइज नहीं करना है। बल्कि आप जो समय, टाइम को यूज नहीं करते हो, एज अ हाउसवाइफ आप टीवी के साथ जो टाइम शेयर करते हो, एज अ बिजनेसमैन, एज अ सर्विसमैन जो आप कहीं भी 2-4 घंटे इधर उधर अपना टाइम फेसबुक व्हाट्सएप में देते हो, वहां से उस टाइम को आज के डेट में आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि आपके स्क्रीन में ये दिख रहा है कि अगर एक फैमिली मेंबर, जहां मान के चलो 4 से 5 लोग हैं, वहां आज उनके घर पे अगर आज के डेट में 1000 रुपए भी सेविंग्स हो रहा है, क्या आने वाले 30 साल में क्या उसका कोई वैल्यू है? वैल्यू क्या आप 5000 रुपए सेविंग्स कर पा रहे हो? ये क्वेश्चन मार्क है। अगर कर पा रहे हो तो क्या उसका वैल्यू 18 लाख रुपए जो भी होगा आने वाले 30 साल में, क्या आपके पास वो वैल्यू सही है? घर में बेटी होती है तो शादी के लिए 18 लाख खर्चा हो जाएगा आज से 20-30 साल बाद। तो आपका सोच क्या है? मेरे गुरु कहते थे धंधा वही करना है जो आने वाले 5 साल में आपको खड़ा कर दे, आने वाले 30 साल बाद सोचने के लिए ना कर दे। क्योंकि आने वाले 30 साल के बाद आपके पास ना ही, बुरा मत मानना मैं खुद को ही बोल रहा हूं, ना आपके मुंह में दांत रहेगा, ना सर पे बाल रहेगा, ना जेब में माल रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से दोबारा कहता हूं, आने वाले 30 साल के बाद ना मुंह में दांत रहेगा, ना सर पे बाल रहेगा, ना जेब में माल रहेगा। अगर मैं जो कर रहा हूं, अगर सिर्फ उसी पे मैं डिपेंड रहूं, तो कुछ अलग करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, और जो समय आपके पास एक्स्ट्रा है उसे एक्स्ट्रा इनकम कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरा सोच यही है कि मैं अगर 20,000 रुपए मैं कहीं से कमाऊं तो वो मेरा सेविंग्स होना चाहिए। क्यों सेविंग्स होना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में इन्फ्लेशन कहां पे है। हर 20 साल में एक 4 से 5 लोगों की फैमिली में जीरो बड़ा है। और लोग आज की डेट में बोल रहे हैं मैं अपने लाइफ में 20 साल देकर, 15 साल देकर आज मैं जीरो हूं। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल गाड़ी पे बैठे हुए थे,
देख ही रहे हम लोग स्क्रीन पे, 1960 में, 1980 में, 2000 में या 2020 में फर्क क्या है? ऊपर देख लो, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, फर्क यही है कि जीरो का फर्क है। अगर हम इसको घटा भी ले, क्योंकि हम बंगाली हो सकते हैं, हम आज यूपी से बिलोंग कर सकते हैं, हम उड़ीसा से हो सकते हैं, हम कहीं से भी हो सकते हैं, अगर हम उसको डिफर करें कि ये मेरा 1,00,000 नहीं 25,000 हो, 50,000 हो, तो आने वाले 2040 में क्या वो आपका 25,000 25,00,000 में हो सकता है? क्या आपका 50,000 50,00,000 में हो सकता है? आप सोचो, या 5,00,000 में हो सकता है? आप क्या उस ट्रैक पे हो? मैं बोला हूं तब आने वाला आधा घंटा भी आपको नुकसान नहीं करना। आप यहाँ पे इन्वेस्ट ही मत करो, क्योंकि आप अगर सही ट्रैक पे हो, अगर नहीं हो तो करना क्या है? करना यही है कि आपको जीना है। किसके लिए जीना है? अपने सपने के लिए जीना है, अपने माता पिता के लिए जीना है, आपके संतान के लिए जीना है, आपके बेटी के लिए जीना है जो बाप के बराबर हो जाए, अपने वाइफ के सम्मान के लिए जीना है। सिर्फ पैसा के लिए नहीं, ये सम्मान भी बहुत बड़ा चीज होता है। आप देख लो स्क्रीन पे, अगर आपको वो सम्मान आपको दिख रहा है जिसके लिए आप कमा रहे हो, आपका 50,000 का लोन बन चुका है इस लॉकडाउन में, क्या मैं एक्स्ट्रा ढूंढ रहा हूं? कहीं से कमाने वाला जरिया अगर मुझे मिल जाए, वो जरिया से मैं उस लोन को चुका पाऊं आने वाले 5 महीने के अंदर, आप क्या ऐसा कोई रास्ता ढूंढ रहे हो? आज आप एक क्लास करवा रहे हो आपके बच्चे के लिए, आपके पास एक ही मोबाइल है, आपको दूसरा भी चाहिए, आपको 15,000 अभी कमाना है एक्स्ट्रा, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करके कर रहे हो या लोन से? आप किसी ट्रैप में मत गिर जाओ, एक्स्ट्रा कमाओ, क्योंकि कमाने के बाद ही आप कुछ अलग कर सकते हो, लोन से नहीं। सो फ्रेंड्स, आप क्या फॉरेन ट्रिप प्लानिंग कर रहे हो आने वाले 2 साल के बाद? आपको प्लानिंग कर रहे हो क्या आने वाले साल भर के बाद दिसंबर में हम अपने फैमिली के साथ दीघा नहीं गोवा चलेंगे? आप क्या फैमिली प्लानिंग कर रहे हो? मेरे बेटे का डिप्रेशन, ये घर में बैठे बैठे वो आज पागल जैसा बन गया, खेलना है उसको लेकर अभी 5 दिन कहीं घूमना है, एक्स्ट्रा कमाने के लिए कोई रास्ता आप ढूंढ रहे हो? आपके माता पिता के लिए आप कुछ ढूंढ रहे हो, कहीं लेके चलोगे? तो आपको इस पे ध्यान नहीं देना है कि कैसे पैसा बढ़ाना है, इस पे ध्यान देना है अभी पैसा क्यों ऐसा कम हो गया है और चीजों का वैल्यू बढ़ गया है। 100 का पेट्रोल डीजल, 100 का पेट्रोल, 100 का डीजल, 200 का सरसों का तेल, कभी सोचे नहीं थे हम लोग बचपन से। अभी कहानी सुनते हैं 5 पैसे में समोसा मिलता था, आज क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पैसा बढ़ गया है और लोगों का कमाई भी बढ़ गया। आप वहीं पे अगर खड़े रहोगे तो यही होगा कि पेट्रोल 1000 का होगा, आपका इनकम करोड़ों का होगा। तो ऐसा प्लेटफॉर्म हमें चूज करना है कि आने वाले समय पे हमें इस पे ध्यान ना देना है कि सोच बदलना पड़े, हमें आज के डेट में सिद्धांत बदलना है। गाड़ी नहीं बदलना है, गाड़ी के साथ और एक गाड़ी लाना है, 2 पहिए के साथ और 2 पहिया जोड़ना है, किसी को भगाना नहीं है। कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, कहीं व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। क्यों करेंगे? लड़ाई हमारे साथ क्या है? लड़ाई हमारे साथ है कि हम अपना बचपन वाला ध्यान हम अपने सोचते हैं क्या कि बच्चा बड़ा होगा तो कोई बढ़िया सा जॉब करेगा। पिछले 2 साल 2019 से लेकर अभी 2021 का जो भी आज दिन चल रहा है 18 तारीख, आप बड़े ध्यान से देख लो सर, बड़े ही ध्यान से देख लो। जितने लोग जॉब पे थे उनका जॉब आज नहीं है, और जितने लोग आज बिजनेस कर रहे थे उनका दुकान खुला है। जितने लोग बिजनेस कर रहे थे उनका दुकान खुला है, वहां पे 5 लोग काम कर रहे थे, आज 2 कर रहे हैं, लेकिन उनका दुकान खुला है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जॉब करने वाले की आज सोच पड़ी है कब मेरा जॉब जाएगा, क्योंकि अभी हम सभी को पता नहीं है ऐसा सिचुएशन कब तक चलेगा। लड़ाई ये नहीं है आज अगर किसी पे जॉब पे आज हो कि मेरा जॉब सुरक्षित है, सोच लो। मैं इतना गारंटी के साथ नहीं तो कह सकता क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन इतना दावे के साथ जरूर कह सकता हूँ कि आने वाले 2 साल के बाद आप भी उसी स्थिति में होंगे जिसको आप आज देख के सोच रहे हो बेचारा ये नहीं करता तो वो करता। तो सोच बदलना है, बेचारा नहीं कहना है, खुद को आज चारा डालना है। एक बीज को हाथ में पकड़ के उसे एक बड़ा सा पेड़ आपको देखना है, वो ड्रीम आपको देखना है।
कि उसको आप कर सकते हो। कैसे? आप अपने नाव को बदल कर, क्योंकि नाव बनता है तो जमीन पर, लेकिन चलता है तो पानी पे, और वो तभी चलता है जब उसके अंदर एक जिद होता है, क्योंकि उसे लहरों को पार करने की आदत हो जाती है। पहले छोटे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। आज भी आपके पास वो सिचुएशन, वो समय है दोस्त, कि आज आप जॉब के पास खुद का एक बिजनेस, खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप, खुद एक आत्मनिर्भर, खुद का कुछ अलग कर सकते हो। कोई दोस्त, मेरे अपने ही बहुत सारे दोस्त, किसी के बॉस ने आज इसी तरह धक्के मार के निकाल दिया, और किसी के कुछ दिनों बाद उनके बॉस ने उन्हें निकाल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज हमारे पास हैं, बहुत सारे, बहुत बहुत सारे, हम सभी के पास है। सो सिचुएशन तब बदलेगा जब हम साथ होंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं और हमारी आइडेंटिटी यही है कि हम किसी का नहीं सोचते, हम खुद का कुछ अलग करते हैं। आज हमारे पास वो हिम्मत है, वो दाव है, और हमारे पास वो समय भी है कि हम आज कुछ अलग कर सकते हैं, क्योंकि आज आपको ढूंढना है मौका। इसी लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे फैमिली मेंबर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स आज घर बैठ गए। हमें उनको घर से निकाल कर कहना है कि ये आज धोखा नहीं है कोविड, ये आज मौका है, ये आज मौका है। और हम सब मिलके इस मौके को आज चौके लगा सकते हैं, छक्का लगा सकते हैं, लेकिन साथ मिलके कुछ कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं। कैसे? अपना खुद का एक ब्रांड बनाकर, खुद का एक ब्रांड। मैं सोमनाथ भगत हूं, यही मेरा गर्व है। मेरे माता पिता ने अगर ये नाम रखा हुआ है तो कुछ अलग सोचा होगा, और ऊपर वाले ने कुछ अलग सोचा है। महादेव ने कुछ अलग सोचा होगा, ऊपर वाले परम पिता परमेश्वर ने कुछ अलग तो सोचा होगा कि इस धरती पे अगर आया है तो कुछ अलग बनाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपना ब्रांड बनाने के लिए हमें कुछ अलग काम करना पड़ेगा। वो काम कैसे करें? अगर वो हम काम करेंगे ना, तो ब्रांड हमें इस तरीके, मतलब इस तरीके से हमें पता चलता है। कैसे पता चलता है? एक बच्चा, शौक था, क्लास 12 तक पढ़ाई किया, उसको शौक था, उसका पैशन था, उन्होंने पढ़ाई किया। अब उस पैशन के साथ उन्होंने क्या किया? उसने अपने पैशन को वहां पे काम पे लगाया, क्योंकि उसके पास अलग हुनर था। उसने नौकरी नहीं ढूंढा, उसने देखा कि मुझे अच्छा क्रिकेट खेलने आता है। उन्होंने क्रिकेट खेला, रणजी खेला। जब क्रिकेट खेल रहे तो देखिए चुनौती कैसे आते। उनके पिताजी गुजर गए, उन्होंने फील्ड छोड़ के नहीं आया, टीम को जिताया, फिर आया, क्रियाक्रम किया अपने पिताजी का। आज देखो उनका पैशन कैसे उनका प्रोफेशन में आ गया, कि उनको लोग बोल रहे हैं कि सर इस प्रोडक्ट आप अपने हाथों पे ले लो तो ये बिकेगा। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोको कोला 2 बोतल हटा दिया, कई करोड़ का नुकसान हो गया। आज विराट कोहली ने एक प्रोडक्ट को हाथ में ले लिया तो कई करोड़ का टर्नओवर बन जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप ही वो ब्रांड हैं। देखो उन्होंने क्रिकेट नहीं छोड़ा, अपनी लाइफ को रिटायरमेंट नहीं लिया, और हम भी आज ये जिस चुनौती की बात कर रहे हैं वहां पे भी हमें चुनौती मिलेगा, लेकिन कोई रिटायरमेंट के साथ नहीं, जो कर रहे हैं उसके साथ। कैसे करेंगे? कि जैसे विराट कोहली ने किया, उन्होंने शैम्पू बेचा, ब्रश बेचा, ऐसा टूथ ब्रश बेचा, मोबाइल बेचा, वॉलिनी बेचे, बैग बेचा, कुरकुरे बेचे, बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचकर आज देखिए क्रिकेट खेलकर उन्हें 46 करोड़ मिलता था, और उन्होंने आज एंडोर्समेंट, मतलब अपना खुद का ब्रांड बनाने के बाद उन्हें मिला है 120 करोड़। ये सालाना इनकम है उनके आज के डेट में। सो दोस्तों, इनका नहीं देखना है। मेरे सामने आज मैं जितने लोगों के साथ बात कर रहा हूं, जो भी आज परिवार वाले मुझे सुन रहे हैं, वो आज मेरे सामने ये ब्रांड है। सिर्फ पहचानने की हुनर होनी चाहिए। मैं आईने के सामने अगर खड़ा हूं और अगर मैं किसी को देख रहा हूं तो वो मैं एक ब्रांड को देख रहा हूं, और जो ब्रांड बताता है। अब इस ब्रांड को हम किस सेक्टर में काम लगाए? मुझे काम तो बहुत सारा सोच आ रहा है दिमाग में, लेकिन हमें किस सेगमेंट में हमें अपना ब्रांड को अपने काम पे लगाना चाहिए, कहां पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे मेरा खर्चा मेरा इनकम में चर्चे में आना चाहिए। तो हम ऐसे एक व्यक्ति की बात बता रहे हैं आपको, जिनका नाम है सर पॉल्जन पिल्जर, जो 2 यूएस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट
और जो आज की डेट में यही कह रहे हैं कि अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो ऐसे सेगमेंट में आपको देना है जहां पे 100% ग्रोथ है, जहां पे 100% अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आप 100% लोगों को एक व्यवसाय दे सकते हो, मतलब आप भी एक अपॉर्चुनिटी सर्व कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो। कैसे? एक एग्जाम्पल के स्वरूप में कह रहे हैं कि दुनिया में अगर आप, ওর ব্যাপারে একটু ডিটেলস দিতে प्लीज सर आप म्यूट हो जाए, मैम जो भी है। প্রবলেম আছে ঠিক আছে कंटिन्यू सर। ओके सर, एक मिनट। सो फ्रेंड्स, बताना यही है कि हमें कहाँ दिमाग लड़ाना है। आपका कहीं का सर्टिफिकेट हो नहीं हो कोई मायने नहीं रखता है, आपका एजुकेशन कितना लेवल का बड़ा है कोई मायने नहीं रख सकता। यहाँ पे जरूरत नहीं है आप कितने टैलेंटेड हो, कितने चालाक हो, कितने आप बुद्धिहीन हो, यहाँ पे कुछ नहीं लगता। आप कितने गोरे हो, कितने काले हो, आप हाउसवाइफ हो, आप रिटायर्ड हो, आपको जॉब नहीं मिला है, आप स्टूडेंट हो, आपको कुछ नहीं मिलता, आपको कोई सोचने की बात नहीं है। यहाँ पे आपके लिए भी ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप अगर मेरे साथ आप ही के इलाके में 5 किलोमीटर, आपके पास साइकिल नहीं है, स्कूटी नहीं है, फिर भी आप इससे 100% कमा सकते हो। आप इससे 100% में गारंटी के साथ कह सकते हो कि आप इसमें करियर बना सकते हो। लेकिन करियर बनाने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि मुझे 100% ग्रोथ कहाँ पे मिलेगा, मैं अपना गोल्डन टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। और मैं आपके साथ गया और मैं आपके 25, 30, 50 घर पे आपके साथ घूमा और मैं आपको बोला कि मेरे पास आज की डेट में 20,000 रुपए है, मैं उनको गिफ्ट करूं जिनके घर में आज कोई डिजीज नहीं है। मैं उनको गिफ्ट करना चाहता हूं जो आज हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जिनके घर में 4-5 लोग हैं। क्या मुझे आप ऐसा गाइड कर सकते हो? आप दिल से सोचना, अगर आप 50 घर जाओगे तो आपको 50 घर में किसी ना किसी को आज डिजीज विथ लाइफ मिलेगा, डिजीज फ्री लाइफ नहीं, डिजीज विथ लाइफ मिलेगा, डिजीज विदाउट लाइफ नहीं। मतलब अगर आपको ये दिखे, आपको अगर ये सही लगे, क्यों ये डिजीज हर घर में है? क्योंकि वो सुबह से खाना खाते हैं, क्योंकि वो सुबह से जो भी खाते हैं उसमें विष है, इसलिए आज डिजीज हर घर पे है। और इसीलिए सर पॉल्सन पिल्जर ने कहा कि रादर देन इन्वेस्टिंग, आज ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इलनेस पे ध्यान ना देकर सेहत को सही रखने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए, डॉक्टर नहीं किसी को कंसल्टेंट बनाने के लिए आप सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। तो इस वेलनेस इंडस्ट्री आज की डेट में सेंचुरी बिजनेस है, आने वाले 100 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप गूगल सर्च कर लेना, आप किसी भी एक्सपीरियंस पीपल का स्टडी सर्च कर लो, वो सभी बताएंगे आज की डेट में वेलनेस। सो फ्रेंड्स, क्यों वेलनेस? अब जब वेलनेस की बात आ गई तो हम कहां पे अपने टाइम को इन्वेस्ट किए। हमने एक खोज निकाला कि बायोशैश, हमें खोज मिला शिवाथ्रन गुरु, हमें खोज मिला एक भारतीय कंपनी की, हमें खोज मिला जिन्होंने लगभग 28 सालों से एक फल को लेकर पूरी विश्व में कमाल कर रहे हैं। none other than our beloved guru, our beloved mentor, our CEO, my dear friends, our managing director मिस्टर अर्जुन खन्ना सर, जिसको सारा पृथ्वी आज के डेट में शिवाथ्रन गुरु के नाम से जाना जाता है। और इनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मुझे स्वस्थ नहीं किया, मेरे पॉकेट को भी स्वस्थ किया और मेरे परिवार को भी स्वस्थ किया। कैसे, मैं आगे आपको बता रहा हूं। आने वाले 15 मिनट आप ध्यान से रखना कैसे, क्योंकि उनका एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आया, क्योंकि वो आज एक इम्यूनिटी बूस्टिंग कंपनी जिसका नाम है बायोशैश। व्हाट इज बायोशैश? आज हमें पहले जानना पड़ेगा उन्होंने जिस कंपनी को इन्वेट किया उसका नाम बायोशैश क्यों है। बायो मीन्स लाइफ, अपना जो लाइफ है, जीवन है, उसको कहते हैं कि शैश का मतलब है प्रोटेक्ट विथ नेचर। ये बेसिकली जिसको लेकर काम करते हैं सिंगल एक फ्रूट का। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो कंपनी में आपको पैसा रोटेशन करना पड़ता है, कोई फ्रॉड, कोई स्कैम, कोई पैसा लगाने वाला धंधा वाला, ऐसा कोई धंधा नहीं है।
ये एक फल को लेकर काम करते हैं और पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं, जिसको सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है आज के डेट में। उसका नाम है सी बकथ्रॉन। ये फल कहाँ पे मिलता है और किस किस नाम से जाना जाता है? 10 से 14 हजार फीट ऊपर ये फल खुद ब खुद होता है, जहां पे आदमी नहीं रहता है, जहां पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, जहां पे इस पेड़ का हाइट होता है 5 फीट और जिसका जड़ होता है 200 फीट। और हमें पता ही है जिसका रूट अच्छा है तो उसका फ्रूट भी अच्छा होगा। ऐसा पेड़ 5 फीट का और ऐसा जड़ जिसका 200 फीट है, जो लगभग 11 महीना रहता है और इसे सिर्फ 25 से 30 दिन ही ये फल को मिलता है प्रिजर्वेशन करने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, मतलब हमें काम पे लगाने के लिए। इस एक फल के अंदर 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है, इसमें मिनरल्स है, सब कुछ है, ABCD जो भी आपको चाहिए आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा है विटामिन सी, जो आज सभी कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको विटामिन सी चाहिए। तो ऐसा बहुत मूल्यवान प्रोडक्ट ये बना रहे हैं और हमारे लिए बहुत महत्व करेगा। इसको लोकल गांव, मतलब जो लद्दाख के लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको सस्ता लुलू, इसको हिपोफाई रैमनॉइड्स, इसे गोल्डन बेरी कहा जाता है, द होली फ्रूट कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस एक फल में, पूरे विश्व में इसी एक फल में चार एसेंशियल फैटी एसिड जो मोस्ट इफेक्टिव है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 एंड रेयर ओमेगा 7, ये 4 एसेंशियल मतलब जो फैटी एसिड है इस एक फल के अंदर मिला। मुझे नहीं पता आपके पास, आपके घर में कौन सा डिजीज है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपके सर के बाल तक, बाल से लेकर आपके पांव के नाखून तक, आप किसी भी डिजीज को जानते हो या नहीं भी जानते हो, ये एक फल इसका निवारण या प्रोटेक्शन दे सकता है। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, करीबन इस फल के ऊपर 130 साइंटिफिक रिसर्च से भी ज्यादा रिसर्च हो चुका है, 130 से भी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है। वैसा ही साइंटिफिक रिसर्च पेपर कह रहा है कि ये हर डिजीज में बेस्ट प्रोटेक्शन दे सकता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वो आज के डेट में डिप्रेशन हो। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही फल को लेकर हम लोग आज काम कर रहे हैं। बायोशैश, क्यों बायोशैश सबसे बेस्ट, यूनिक, ओवर द वर्ल्ड ओनली वन कंपनी है? कारण ये पिछले 14 साल से इन देशों में एक्सपोर्ट कर रही है सीबकथ्रॉन के ऊपर। सिर्फ सीबकथ्रॉन का रॉ मटेरियल इन देशों में, इतने देशों में ये एक्सपोर्ट करती है पिछले 14 साल से। एपोलो फार्मेसी का भी ब्यूटी एंड प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं पिछले 14 साल से। सो फ्रेंड्स, कंपनी ने इस सीबकथ्रॉन बेस के ऊपर काम चालू किया और इसको DRDO, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये DRDO के जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी सर्टिफाइड किया कि बायोशैश एकमात्र पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी कंपनी है, और हम गर्व से कहते हैं कि ये एकमात्र विश्व में भारतीय कंपनी है जो वाइल्ड सीबकथ्रॉन 100% हर एक प्रोडक्ट में यूज करती है। मतलब बायोशैश प्रोडक्ट की प्योरिटी के ऊपर बहुत सारा ध्यान देती है। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी कंपनी की बात हम अगर जब छेड़ते हैं ना, तो हमें पहले देखना चाहिए कंपनी की प्रोफाइल। हमने बताया, अब आते हैं कंपनी किसको लेकर काम करती है, मतलब प्रोफाइल के ऊपर प्रोडक्ट, और जिस फल के बारे में आज DRDO कह रहे हैं। व्हाट वी डू, हम करते क्या है? हम दिन भर जो चैट करते हैं, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप करते हैं, हम इसी को एक्स्ट्रा टाइम में हम इनमें इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट वी डू, हम जिसको सब्सक्राइब करते हैं, हमें जिससे फायदा नहीं मिलता है, हम उसमें से कुछ अलग काम करते हैं। कैसे? एक बास्केट कंपनी ने बनाया हुआ है, एक सिंपल सा एक बास्केट बनाया हुआ है, जो कंपनी ने 140 सीबकथ्रॉन बेस्ड प्रोडक्ट और बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे, जिसमें ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, स्किन केयर, मेंस केयर, हेल्थ फूड, हेल्थ केयर, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट, किचन मसाला, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, ऐसे बहुत सारे इनोवेटिव, जो सिर्फ वर्ल्ड में एक ही मात्र कंपनी बायोशैश में है। वाई बायोशैश? बिकॉज एकमात्र कंपनी जिसके पास यूनिक लेवल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड, वो भी सीबकथ्रॉन बेस्ड विथ ओमेगा 3, 6, 7, 9, पूरे वर्ल्ड में नहीं है किसी के पास। ऐसा ही
बास्केट में से आप अपने चूज ओन चॉइस कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो, एक प्रोडक्ट ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम आपको हेल्प करेंगे। अगर कंपनी का कोई वीकली ऑफर चलता है, हर एक वीक का एक ऑफर चलता है जिसमें कंपनी ने 25 से लेकर 100% तक हर एक हफ्ते में अलग अलग ऑफर देती है। जैसे हम करते क्या है, करते यही है, अपने घर का जो भी खर्चे वाला प्रोडक्ट है, जैसे शैम्पू, हेयर ऑयल, कॉर्नफ्लेक्स, जैम, हेल्थ ड्रिंक्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स और किचन मसाला, जो भी प्रोडक्ट हमारे घर पे लगता है, हम जिस दुकान से लेते हैं बचपन से लिए हैं। हालत देख लो, ना रंग बदला है ना जेब बदला है। और अगर इसको हम अगर मौका लगाते हैं और दुकान बदलते हैं तो हमें ऑफर भी मिलता है जो हमारे दुकान वाले नहीं देते हैं। वो खुद लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि फायदा मुझे मिलेगा तो हम अपने दुकान में 4-5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे उसके बाद। और यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट ऑफर मिलेगा। कैसे ऑफर मिलेगा? आपको 5,000, 10,000 का ऑफर मिलता है हर वीक में। इस वीक का भी है, बुधवार तक है हमारा हफ्ता। गुरुवार को शुरू होता है, बुधवार को खत्म होता है। बास्केट में से आपके पसंदीदा जो भी प्रोडक्ट है वो आप 5,000 का उठा लो, कंपनी आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको 2,000 का प्रोडक्ट गिफ्ट करे। आप 10,000 का प्रोडक्ट उठा लो, आपको 17,000 का मिलेगा। एमआरपी में नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में। सबसे बड़ी बात है कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में, मतलब आपको यहाँ पे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कंपनी एक मौका दे रही है। और आपके पसंदीदा प्रोडक्ट आप यहीं से चूज कर लोगे तो आपको मिलेगा क्या? आपको अपने घर के खर्चे के लिए प्रोडक्ट मिलेगा और उसमें भी एक फ्री मिलेगा। आते हैं, जैसे एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उसी बास्केट में से मैंने चूज किया एक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि तुलसी, और वो भी हिमालयन पंच तुलसी। अब ये प्रोडक्ट इतना खास क्यों है? क्योंकि हम इसके चर्चे में आ जाते हैं ना। हमारे घर में जो भी अगर प्रोडक्ट आता है तो हम इसके चर्चे में आ जाते हैं, और चर्चा हम उसी के साथ करते हैं कि जो हमारे फायदे हो। दोस्त, हम समय वहीं पे देंगे जो हमारे फायदे के लिए होगी। हम अपने घर पे जो भी काम लगाते हैं, और जैसे भी ये तुलसी ले हैं, तो हमारे पास एक मैम है जो शर्मिष्ठा मुखर्जी है और जो आसनसोल से शायद बिलोंग करती हैं। तो ऐसा एक प्रोडक्ट उन्होंने क्यों लिया? क्या वो मुझे सुन पा रही है शर्मिष्ठा मैम? हाँ सर, गुड इवनिंग। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ ये सर, बताएंगे कि आप किस प्रोफेशन से हैं, कहाँ से हैं, और ये प्रोडक्ट आपका फायदा क्या क्या है, आपके घर के लिए क्या फायदा दिया है? प्लीज हमारे सभी गेस्ट को बताएंगे। सर हम पश्चिम बर्धमान का आप खासकेंद्रा बंगाली में कॉलोनी। बोलिए, आप बंगाली में बोलिए मैम। ওকে ওকে স্যার, আমি পশ্চিম বর্ধমানে থাকি। পশ্চিম বর্ধমানে খাসকেন্দ্রা কলিয়ারিতে থাকি। আমি প্রফেশনে একজন স্কুল টিচার। তো আমি ফ্রম বিগিনিং মানে অনেক ছোট থেকে ভীষণ গ্যাস প্রবলেমে ভুগতাম প্রচন্ড ভাবে, এবং বহু রকম ট্রিটমেন্ট করেছি। আজ এত বছর, নাও আই এম 52 ইয়ার্স ওল্ড। তো এতদিন আমি বহু জায়গায় ট্রিটমেন্ট করেছি, বহু ডাক্তার দেখিয়েছি। হয়তো সাময়িকভাবে আমি সেরে উঠেছি, কিন্তু আজ এই বিগত 9 মাস যাবত, নিয়ার অ্যাবাউট 8-9 মাস হবে আমি এই বায়োসেস কোম্পানি জয়েন করেছি। আমি স্যার প্রথমে নিজের উপর এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যই আমি মেনলি এটা জয়েন করেছিলাম, কেননা আমি প্রচন্ড ভাবে মানে অ্যাসিডিটিতে ভুগছিলাম, যার ফলে আমার প্রফেশনও আমার একটু অসুবিধা হচ্ছিল। বিভিন্ন কাজে আমি সবসময় ইনভলভ হতে পারছিলাম না। তো থ্যাঙ্কস বায়োসাস, আজ 9 মাস ধরে আমি এতটাই সুস্থ, এবং আমি আমার বন্ধু বান্ধব, আমার ফ্রেন্ড সার্কেল, আমার ফ্যামিলিতে যারা আছে, আমি সবাইকে মোটামুটি এই আমার এই বায়োসাসের এই যে তুলসী প্রোডাক্টটা, পঞ্চ তুলসী খেয়ে আমি এত ভালো আছি। থ্যাঙ্কস বায়োসাস। আমি বায়োসাসের জন্য আমার অনেক 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 শুভকামনা। এবং আমি হয়তো সেইভাবে বায়োসাসের অ্যাক্টিভ যোদ্ধা নই, কিন্তু আমি স্যার বলতে চাই যে আমি কিন্তু পরোক্ষভাবে বায়োসাসের সঙ্গে সবসময় আছি, থাকবো, এবং আমি আশা করব
যে আমার শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো আমি এই বায়োসাসকেই আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই, এবং কেননা আমি এতটাই ভাবে এটা থেকে উপকৃত হয়েছি, মানে আমার মানে আমি স্পিচলেস, আমার কিছু বলার নেই। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মোস্ট আপনার ইমোশন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ও আমরা ভীষণ মারাত্মক খুশি আমি ইমোশন হয়ে স্যার, যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। सो ভীষণ থ্যাংক ইউ স্যার। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप ओके नेक्स्ट ओके सर, आप म्यूट हो जाइए मैम। तो नेक्स्ट ओके ओके मैं सर। हमारे बास्केट में से मैंने एक नमूना आपको दिखाया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एज अ प्रोफेशन स्कूल टीचर आप सभी ने सुना कि उनके घर में आज वो अपने लास्ट दिन तक ये ऐसा प्रोडक्ट अपने घर में रखना चाहेंगी, और बायोसास ऐसा ही प्रोडक्ट है सर। तो नेक्स्ट हम एक प्रोडक्ट की बात करेंगे जिसका नाम है सिवाक्सोन टर्मरिक ऑयल जूस। तो फ्रेंड्स, इस टर्मरिक ऑयल जूस को जिन्होंने यूज किया हम उनकी बात सुनेंगे। रिमोन बैनर्जी मैम, रिमोन बैनर्जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं सर? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার কি কি প্রবলেম ছিল আর এই প্রোডাক্ট আপনার জীবনে কিভাবে কাজে লেগেছে একটু সবাইকে। প্রবলেম ছিল, সেটা হচ্ছে আমি লাস্ট 7 মাস ধরে বায়োসাসের সাথে সরি ম্যাম, এই টার্মারিক জুসটা আমার জন্য। হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ আপনি একটু লোকেশনে আসুন, আমরা শুনতে পেলাম না, আরেকবার শুরু থেকে। ও, এবার শোনা যাচ্ছে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে। হ্যাঁ, আমি 7 মাস ধরে লাস্ট বায়োসাসের সাথে যুক্ত আছি। তো বায়োসাসের অনেক প্রোডাক্ট আমি ইউজ করছি, তবে যেটা সব থেকে তাড়াতাড়ি কাজ হয়েছে আজকে আমি সেটা বলবো, সেটা হচ্ছে টার্মারিক জুস। বহুদিন ধরে, মানে আমি প্রায় ছোট থেকেই দেখছি যে আমার সবাই বলে যে যখনই আমাকে টাচ করে বলে যে তোর কি জ্বর এসছে, মানে আমার গায়ের টেম্পারেচার নর্মালের থেকে সবসময় বেশি থাকে। তো এছাড়াও মানে এটা আমার পেটের প্রবলেম, লিভার যত বড় হয়েছে তত বোঝা গেছে যে এটা লিভার থেকে প্রবলেমটা হচ্ছে, এবং যার জন্য জিভে কালো কালো দাগ থাকে, পিম্পলস হয়, আন্ডার আই ডার্ক সার্কেল থাকে। তো হঠাৎ আমি 5-6 দিন আগের উইক থেকে ধরুন আমি টার্মারিক অয়েল জুসটা শুরু করেছিলাম। তো শুরু করার পর আজকে বা আগে, মানে গত 2 দিন থেকে আগে থেকে বলছি, 5 দিনের রেজাল্ট এটা। আমার টেম্পারেচার নর্মাল আছে, মানে আর 5টা লোক যারা সবসময় আমার গায়ে টাচ করে বলতো যে গায়ের টেম্পারেচারটা অনেকটা বেশি, তারা একদম এখন বলে যে না ঠিক আছে। এবং 5 দিনের রেজাল্ট, আমার পিম্পলের মার্কস গুলো অনেকটা কম হতে শুরু করেছে, এবং পিম্পল গুলো প্রায় আর আসছে না, এবং ডার্ক সার্কেলটা আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে। এটা আমার কাছে মনে হয়েছে এই টার্মারিক অয়েল জুস, সিবাকথন উইথ টার্মারিক অয়েল জুসটা খুব মিরাকেল এবং তাড়াতাড়ি এফেক্টিভ আমার জন্য হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার। प्रोडक्ट के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन लेंगे। द ब्यूटी क्वीन सिवाक्सोन ऑयल, जबरदस्त एक प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सुनीता जायसवाल मैम, मैम इसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? यस सर। हेलो थोड़ा एवरीवन, मैं सुनीता जायसवाल पांडवा हुगली से बोल रही हूँ। मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस आप लोग साथ बांटना चाहती हूँ। मुझे 4 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था, जिसकी वजह से मेरे शरीर पर बहुत ही गहरा काला काला दाग हो गया था। हेलो, यस मैम, सुनाई दे रहा है, सबको सुनाई दे रहा है। मैं उस दाग को हटाने के लिए बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन वो दाग जा ही नहीं रहा था। जैसे नारियल का पानी, शंख का चूर्ण, नोमॉक्स, तरह तरह की उपटन, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मुझे मेरा शरीर खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। थैंक्स टू अपलाइन, मिट्टू मैम और प्रवीर सर, जिन्होंने मुझे बायोसेस के बारे में बताया, और मुझे बायोसेस के एसबीटी ऑयल और लेमन जेल को मिलाकर लगाने का सलाह देने मेरे ग्रेट अपलाइन दीपक सर ने बताया, जिसको मैं इस्तेमाल किया और मुझे काफी अच्छा परिणाम मिला। दाग अब ना के बराबर है। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। ये आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये पिंपल का दाग। मुझे भी आज याद आ गया कि मैंने एक लड़की, कॉलेज की लड़की को देखा था, वो पिंपल के लिए इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि घर से नहीं निकल रही थी।
तो ये एक शायद ऐसा इंफॉर्मेशन होगा कि हमारे घर में हमारे बहन के लिए, हमारी हर लड़कियों के लिए जो भी एक इंफॉर्मेशन आपने यहाँ शेयर किया, कुछ देर पहले वो मैडम भी जिन्होंने शेयर की, कुछ उससे भी पहले एक स्कूल टीचर मैम ने भी जो शेयर किया, बहुत जबरदस्त लग रहा है, बहुत जबरदस्त। ये शायद आज के लिए सबसे ग्रेट न्यूज होगा कि हम लोगों को एक बेस्ट इंफॉर्मेशन दे पा रहे हैं, और ये हमारे लिए भी एक बहुत मतलब एक्साइटमेंट की बात है कि हम उपकार शेयर कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। तो हम नेक्स्ट एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो आज हर घर में एक बड़ा समस्या होकर खड़ा हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि डायबिटीज। तो इसके शायद मुझे सुधांशु शेखर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हेलो, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, आप थोड़ा हमारे गेस्ट को बताएंगे कि ये डायबिटिक आपको कैसा राहत मिला, बायोसस के प्रोडक्ट आपके घर में ये कैसा काम किया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहता हूँ कि मैं सुधांशु शेखर कौर हूँ। मैं पश्चिम बर्धमान चिचुड़िया, तो বাংলাতেই বলছি। হ্যাঁ, বাংলাতে আমি বেশি কমফোর্টেবল। ওকে স্যার বলুন স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, তো আমি চিচুড়িয়া গ্রামে এখানে থাকি। তো লাস্ট গত বছর দুর্গাপুজো এরকমই টাইম ছিল যখন আমার একটু ইনফেকশন দেখা গেছিল শরীরে, ঠিক আছে। তো আমরা নর্মালি যেটা করে থাকি ডাক্তারের কাছে যাই, তো ডাক্তারের কাছে গেলাম, ডাক্তার বলে যে তুমি এগুলো টেস্ট করো, তো আমার মনে হচ্ছে তোমার সুগার আছে। এবার সরি सुधांशु जी, আমি বলো सर हम আপনাকে হ্যালো। শোনা গেল না স্যার, आप फिर शुरू से करें। হ্যাঁ एक बार शुरू से। হ্যাঁ বলছি, একদম একদম ঠিক আছে। হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে গত বছর দুর্গাপুজোর সময় শরীরে কিছু ইনফেকশন দেখা গেছিল আমার, ঠিক আছে। তো সবাই বেসিক্যালি যেটা করে সেটার জন্য ডাক্তারের কাছে যায়, আমিও গেছিলাম। তো ডাক্তার বললো যে তুমি কিছু টেস্ট করো, ঠিক আছে, যার মধ্যে সুগার টেস্ট ছিল। আমি বললাম সুগার টেস্ট, আপনার কি সুগার ইয়ে করছেন? বলছে হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন তোমার বাবা মায়ের সুগার আছে? আমি বললাম হ্যাঁ, আমার বাবা মায়ের সুগার আছে। তো ঠিক আছে, তো সুগার টেস্ট করালাম যথারীতি। সুগার টেস্টের রেজাল্ট আসলো নভেম্বর মাসে, এবং টেস্টের রেজাল্ট আসলো একদম 300, ঠিক আছে। মানে ফাস্টিং এন্ড পিপি দুটো হয়। তো ফাস্টিংটা আমার এসেছিল প্রায় 200 এবং পিপিটা 300, যথারীতি। 31 বছর বয়স আমার, ঠিক আছে। ঘাবড়ে গেলাম বিশাল, যে কি হয়ে গেল, সুগার হয়ে গেল, এবার তো তাহলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ, সারা জীবনের জন্য ওষুধ, এইসব টাইপের কনসেপ্ট চলে আসলো। তো তখন ওইরকমই ভাবতে ভাবতে আমি ভেবেছিলাম যে প্রথম, যেহেতু আমার এজটা কম, আমি প্রথমে ভাবলাম যে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন তো সবাই বলছে, রেকমেন্ড করছে, ডাক্তারও বলছে অ্যালোপ্যাথি মেডিসিন চালু করে দাও, ঠিক আছে। তো আমি ভেবে দেখলাম যে না, যদি অ্যালোপ্যাথি চালু না করে এমন কিছু আমি যদি অপশনের দিকে যাই যেটাতে আমার মানে এই যেন জীবনভর কন্টিনিউয়েশনের কোনো যেন ব্যাপার না থাকে, এবং যেটা অরিজিনালি যেটা আমার ট্রিটমেন্ট হয় সেটা যেন ঠিকঠাক হয়। কারণ বেসিক্যালি আমরা জানি অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করার গিয়ে বেসিক্যালি যেটা আমাদের প্রবলেম থাকে সেটা কিওরের রাস্তাতে অতটা কিন্তু যায় না। বেসিক্যালি কি হয় যে সেটাকে দাবিয়ে দাবিয়ে রাখে, দাবিয়ে দাবিয়ে কন্টিনিউ করো জীবনভর। তো সেই হিসাবে সেটা করতে আমি রাজি ছিলাম না। তো আমি কি করব খুঁজে বেড়াচ্ছি। সেই টাইমেই আমার আপলাইন এবং আমার জামাইবাবু, উনি সুজিত সাহু, উনি আমাকে বললেন যে তুমি একবার এটা ট্রাই করে দেখো, সিম্পল। তো আমি বললাম যে, তখন আমি বললাম যে বেসিক্যালি আমার নিজের জামাইবাবু বলছেন একটা প্রোডাক্ট, যখন আমি বললাম যে তোমার কি মনে হয় এটাতে ঠিক হতে পারে, তখন বলে যে তুমি ট্রাই করে দেখো, যদি ঠিক না হয় তাহলে তুমি তো, তোমার কাছে তো রাস্তা খোলা আছে। এখন আমিও ভেবে দেখলাম হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। আজ আমি ট্রাই করে নিশ্চয়ই যদি দেখতে পারি, যদি হয়ে যায় তাহলে তো সেটা আমার পক্ষে বিরাট বড় একটা ব্যাপার হয়ে যাবে। তো সেই হিসাবে আমি ট্রাই করলাম ডায়াবো জুসটা আর ডায়াবোসাস ক্যাপসুলটা নেওয়া শুরু করলাম। সেটা ছিল নভেম্বর মাস। তো স্টার্ট করলাম, স্টার্ট করতে করতে বেসিক্যালি আমরা সবকিছু জানি, যে কোনো জিনিস যদি আমরা স্টার্ট করে দিই তো 1 মাসে বা 2 মাসের মধ্যে সেটা রেজাল্ট আসে না, একটু টানতে হয়। তো আমি কি করলাম যে আমি ঠিক করেছিলাম যে 6 মাস খাবো। তো আমি ঠিক যথারীতি 6 মাস খেলাম, ঠিক আছে। 6 মাস খাওয়ার পরে যখন আমি আবার দেখলাম যে টাইম তো হয়ে গেছে, একবার টেস্ট করে নিই। তো যখন টেস্ট করলাম, টেস্ট করাতে আমার যে সুগারটা ছিল 200 এবং 300, সেটা মিরাকেলি চলে আসলো 100 এবং 130, ফাস্টিং 100 এবং পিপি 130, যেটা দেখে আর কেউ না হোক আমি তো প্রচন্ড জোরে চমকে গেছিলাম যে মিরাকেল হয়ে গেছে এটা। কারণ ইভেন আমি এই রিপোর্টটা নিয়ে আমি যে ডাক্তারের সঙ্গে দেখাতাম, অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার, তার কাছেও গেছিলাম। তিনি বলছেন যে তুমি কোন মেডিসিন খাচ্ছ, তুমি আমার মেডিসিন গুলো খাচ্ছ তো? আমি বললাম না, আমি তো কোনো মেডিসিন খাই না। তাহলে কি খাও? তখন আমি সেখানে বললাম যে আমি এরকম বায়োসসের একটা প্রোডাক্ট, ডায়াবোসাস ক্যাপসুল এবং ডায়াবো জুসটা আমি খাচ্ছি। তো বলছে আর আর খালি ডায়েট মেনটেন করছি সিম্পল, যেটা সবসময় করতে হয়। তো বলছে সেটাতে তোমার হয়ে গেল? আমি বলছি হ্যাঁ। তাহলে তো এটা মিরাকেল হয়ে গেছে। এবং আমি তো বলবো যে তুমি একটা ইন্সপিরেশন হতে পারো সমস্ত পেশেন্টদের কাছে যারা মনে করে যে একবার সুগার হয়ে গেলে আর সেটা কিওর হতে পারে না। তো সেটাই আমার সব থেকে বড় পাওয়া। এবং থ্যাঙ্কস টু বায়োসস যে আমি
যে আমার যে সুগারটাকে আমি ভেবেছিলাম হয়তো আমাকে জীবনভর টেনে নিয়ে যেতে হবে, আমি কিছুই করতে পারবো না, সবকিছু খারাপ হয়ে গেল, আমার জীবন শেষ হয়ে গেল, সেক্ষেত্রে আমাকে আমার লাইফটা ট্র্যাকে নিয়ে এসছে। ঠিক আছে, এইটুকুই। ধন্যবাদ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सुधांशु जी। मतलब आप सही में एक इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपकी आवाज मेरे ख्याल से जितने लोग भी आज सुन रहे, जितने भी परिवार आज सुन रहे, उनके घर में भी एक डिप्रेशन सॉल्यूशन मिल गया है। हाँ, बायोशैस इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिप्रेशन, जहाँ एकदम। आपको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि हमने ये तय किया था कि हमारे घर पे वो सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए, वो ताकत हमारे रैक में होना चाहिए, जो हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारा खर्चा नहीं, हमारा चर्चा आने वाले दिन पे हो सकता है। जो सुधांशु जी और मैडम ने जो एक्सपीरियंस शेयर किया, उसी से हमने क्या किया कि एक छोटा सा दुकान, जैसे हम आज मान के चले, हमने किसी से पूछा कि पान का गुमटी खोलेंगे कितना लगेगा, बोले दुकान खोलने के लिए 50,000 लगेगा। मैंने दुकान बनाने के लिए कितना लगेगा, बोले 1,20,000 से 30,000, मतलब 1,80,000 हो गया। मैंने बोला कि भाई ये दुकान कहाँ लगाएंगे, बोला वो तय करने के लिए भी तो पैसा लगेगा, वो भी एक सही जगह होना चाहिए। तो ये समय ना निकालकर आज के टाइम हमें ना दुकान खोलना है, ना ठिकाना खोलना है, आपके घर पे ही आप अपना दुकान खोलो। और अगर 10 से 30,000 कमाना है तो कम से कम एक 5 से 10,000 का एक प्रोडक्ट अपने घर पे, अपने पसंदीदा आप अपने घर पे लाओ और इंस्टेंट इमीडिएट इनकम करो। कैसे? ऐसे ही सुधांशु जी का वीडियो हमारे पास है, इसे शेयर करो। बहुत सारे ऐसे 50-100 वीडियोस हमारे पास है जिनको हमने शेयर किया। हमारा काम यही है कि शेयर करना, खुद को यूज करना। मैंने ये प्रोडक्ट लिया और मैंने खुद यूज किया, मुझे फायदा मिला, तब मैंने इनको शेयर किया, इनको फायदा मिला, ये 10 लोगों को शेयर करे, इनको मिला। जैसे हम लोग सलमान खान का मूवी 300 करोड़ का हुआ, क्यों? नाम था जय हो। क्या कहते थे? खुद किसी का भला करना हो तो किसी को भला करो, तो भाई खुशी जब मिलती है तो थैंक यू मत बोलो, 3 लोगों को शेयर करो। हमने भी वही अप्लाई किया और एक दुकान खोला, 5,000 से 10,000, जहां पे एक छोटा सा भी कुछ नहीं होता है। हम अपना सपना देखे थे, क्योंकि मेरे बेटे को मुझे एक बहुत अच्छा एक घर देना है, बहुत अच्छा एक गाड़ी देना है, बहुत अच्छा एक एजुकेशन देना है, मेरे माता पिता का एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देना है और एक अच्छा लाइफस्टाइल खुद के लिए जीना है। तो मैंने ये किया। तरीका क्या था? सेल्फ या नेट? देखो यहीं पे हम 2 लोगों को देख रहे हैं। एक मच्छी पकड़ने के लिए एक छिप को लिया और उसमें नाव पे बैठ के वो तालाब में बैठ के यही कर रहा है 20 तालाब पे, और बगल वाले लोग भी वही काम कर रहा है, बट एक नेट लिया है। अल्टीमेट वो कर क्या रहे थे दोस्त ये कर रहे थे, तो वो काम, वो वर्क ही कर रहे थे, वो अपना काम ही कर रहे थे जो आप कर रहे हो। देखो उसको भी बैठने के बाद उसको क्या मिला, एक मच्छी मिला। और बगल वाले को देखो, अगर अकेले से 2 आदमी बन गए तो ऐसे मिलेगा। ऐसी बारिश बनती है यहाँ पे पैसे की, ऐसा सेहत मिलता है, बारिश होती है सेहत की। माय डियर फ्रेंड्स, आज 31 साल का एक बंदा जो आज डिप्रेशन में जा सकता था, आने वाले 5 से 6 महीने में वो अपने डिप्रेशन को पहले लिया। उसका किडनी डैमेज नहीं होगा, उसका हार्ट सही रहेगा और उसको फैमिली वाले भी पूरे डिप्रेशन से मुक्त हो गए। माय डियर फ्रेंड, बायोशैस प्रोडक्ट नहीं है, लाइफ टाइम एसेट है हमारे पास। हम इसे काम पे ना लगाए तो हम खुद को कहते कि मैं लायक नहीं हूं, या खुद अलग भी कह सकते कि, तो हम करें क्या? सेल्फ वर्क या नेटवर्क? आपके पास दोनों का एग्जाम्पल है। अगर नेटवर्क करते तो क्या मिलेगा? एक मच्छी नहीं, बहुत सारा मिलेगा। तरीका कैसे है? मैंने क्या किया, 5,000 का एक प्रोडक्ट लिया, अपने पसंदीदा लाइक लिया, मुझे इफेक्ट मिला, मैंने शेयर किया। घर पे प्रोडक्ट खत्म, पैसा मेरे जेब में। अब मैंने क्या किया, मैं जितने लोगों को मैं जानता था उसको मैंने शेयर किया कि भाई देखो ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, क्या ये आप यूज करो। उन्होंने भी कहा हाँ तेरे को मिला है तो मुझे भी मिलेगा। मैंने वीडियो शेयर किया, उन्होंने मेरे साथ हाथ दिया। कैसे हाथ दिया? ऐसे मैंने शुरुआत किया और वो जाल बिछाया, पहले 2 लोगों को जीवन भर। यहाँ मुझे 2 क्वेश्चन मिला था जब मैंने शुरू किया था, सर मेरे 2 लोग, मुझे कहां से 2 लोग मिलेंगे? तो मेरे गुरु ने मुझे एक ही रास्ता, एक ही बार में मेरे दोनों आंखों को खोल दिया कि भाई जिंदा हो 2 लोग नहीं मिलेगा, मरोगे तो कितना लोग चाहिए? मैंने कहा 4, मतलब मरने के बाद 4 लोग मिलेंगे। जीने के बाद अगर अपने जीवन के, अपने फैमिली के लिए अगर कुछ अलग करना चाहते हो, क्या 2 लोग नहीं ला सकते?
तो मैंने कहा हाँ मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 पैर हैं, मेरे 2 हाथ है और मैं 2 लोग ला सकता हूं। क्यों लाएंगे? क्योंकि उनके घर में भी किनको लाना है, किसे मैं कहूंगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था मेरे पास। जिनको पैसे की भूख होगी, जिनका जरूरत होगा और खुद की ऑथोरिटी में जीते हैं, किसी और की लाइबिलिटी में नहीं, खुद की ऑथोरिटी में, उनका खुद का सपना होगा, खुद अलग कुछ करना चाहेंगे, जिनके अंदर जज्बा जुनून होगा, ऐसे 2 लोग अगर आपके साथ आगे, कितना टाइम लगेगा? कोई टारगेट नहीं, कोई टारगेट नहीं, आप अपना टारगेट बनाओ। अगर आप ये जुलाई महीने में 2 लोगों को लाए, देखिए कांड क्या घटता है यहाँ पे। अगर इसे ही जुलाई महीने में, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप 5 साल कहीं काम करके बोल रहे हो कि सर आज के डेट में भी कुछ नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप मुझे 5 महीना दे दो, सिर्फ 5 महीना, मैं आपको दिखा सकता हूं कि 5 महीने में मैं आपको 20,000 रुपए का ना, अगर महीने का कमाई नहीं करवा दिया तो मेरा नाम सोमनाथ भगत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर मुझे आप 5 महीना दे दिए, अपना जीवन का 2 घंटा 5 महीना मुझे दे दिया, हर एक दिन का, हफ्ते में 5 दिन दिए, तो मैं ये गारंटी के साथ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, जैसे मुझे मिला है महीने का 20,000 का इनकम। मैं अभी लाख की नहीं जाता हूं, मुझे महीने का 20,000 होगा एक्स्ट्रा, तो वो मेरा सेविंग्स होगा, जिससे मेरा सपना पूरा होगा। अगर ये 20,000 कैसे होगा? वो 2 सही दोस्त मिले मुझे, मैंने उनको भी कहा कि मुझे जैसा प्रोडक्ट मिला था, तू भी अपने तरीके से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट लो। उन्होंने भी लिया और मेरे अकाउंट में देखिए 375 रुपए एक इनकम आया पार्ट टाइम में। शुरुआत में बहुत छोटा दिखता है, लेकिन बहुत मोटा पैकेट है माय डियर फ्रेंड्स। कैसे? देखते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया, 10 से 40% का वीकली ऑफर मिल गया, आपको कोई भी टारगेट नहीं है। आप क्या किए, अभी जुड़े, इस महीने का टारगेट लिए कि मैंने 4 लोगों को जोड़ना है। एक एग्जांपल बताते हैं, आपने अपने लोगों को साथ जोड़ो या 2 दोस्तों के साथ जोड़े हो, वो दोनों दोस्तों को बोलो कि आप भी एक जोड़ना इस महीने। यूनाइटेड होके, टीम वर्क है, नेटवर्क है, अकेले एफोर्ट नहीं देना है, सब टाइम थोड़ा थोड़ा देंगे ना, 5 दोस्त मिलकर टाइम देंगे तो देखिए क्या कमाल होता है 5 महीने में। मैंने क्या किया, उन 2 दोस्तों को लाया, मैंने एक का नाम दिया कुंतल जी, एक का नाम दिया राज मल्लिक सर। इनको भी एक दोस्तों को इमीडिएट उन्होंने भी स्पॉन्सर किया, और ये 2 करते ही मुझे जुलाई महीने में 4 दोस्तों को लाने की वजह से मुझे क्या मिला, मैंने 10,000 बेबी का बिजनेस किया। बिजनेस वॉल्यूम, पैसा यहां नहीं चलता है, तो मुझे इनकम मिला एकदम नीचे देखे 1125 रुपए का इनकम मेरे अकाउंट में हिट कर गया, जो मेरा एक्स्ट्रा इनकम शुरुआत के टाइम में मिला। अगस्त महीना आया, मैंने क्या किया, उन 4 दोस्तों को बोला कि मैंने जो सीखा है क्या तुम सीखोगे? उन्होंने कहा हाँ। मैंने उनको सिखाया, क्या सिखाया? जुड़ो जोड़ो जीतो, जुड़ो जोड़ो जीतो। प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करो और वहां से कमाओ। प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करो और वहां से कमाओ। कैसे करना है? आप भी, मैंने जो किया अगस्त महीने में, आप भी वही करो। क्या करना है? 4 दोस्तों को पूरे महीने में, छोटा काम करना है, बड़ा काम नहीं करना है, पार्ट टाइम में करना है। आपने भी वही काम किया, सिर्फ 4 लोगों को जोड़ा। ऐसे मेरे 4 दोस्तों ने यही काम किया, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया, 16 लोगों का टीम हो गया, मेरा इनकम भी 4,000 से ऊपर आ गया, 4,050 रुपए का, सॉरी 4,500। ये भी व्हाइट इनकम है, टीडीएस 5% कट के मेरे अकाउंट में हिट कर रहा है माय डियर फ्रेंड, एकदम फ्रेश व्हाइट इनकम। अब तीसरे महीने सितंबर महीने में आपने वही किया जो 16 दोस्तों को आपने सिखाया। आपका काम क्या है? सिखाना, करना नहीं है, सिखाना, और उनको सिखाना है जो करना चाहते हैं। हम करते क्या जानते हैं? सिखाते उनको जो करना नहीं चाहता है, मतलब अपना टाइम वहां देते जहां पे अपना काम ही नहीं बनेगा। तो सिखाओ उन्हीं को जो सीखना चाहते हैं। ऐसे 16 दोस्तों को सिखाओ। तीसरे महीने में देखो 64 लोगों का आपका फैमिली बन जाएगा, आपके अकाउंट में एक इनकम आएगा, वो देखिए 18,000 आपका रास्ता बनना चालू हो गया। 5वें महीने में, 4थे महीने में आपने क्या किया? उन 64 लोगों को आपने सिखाया। आप सिर्फ 2 दोस्तों को जोड़े थे, माइंड इट, आपने 64 लोगों को सिखाना चालू किया। जोड़ना 2 ही को है, सिखाना 64 को है, और लाइफ टाइम सिखाना है, क्योंकि आपका अकाउंट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा?
256 लोग आएंगे, आपका देखिए चौथे महीने में 72,000 का इनकम। 5वें महीने में आपने क्या किया, उन 254 लोगों को, आपने 56 लोगों को सिखाया और 1024 लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ चुके हैं, ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ये एक सिस्टम है, ये प्रूफ सिस्टम है, ये साइंटिफिकल लॉजिक सिस्टम है माय डियर फ्रेंड। और आपका इनकम देखिए 2,88,000 माय डियर फ्रेंड्स। ये अगर इसका 10% मैं मान के चलता हूं, अगर इसका 10% भी आपने किया तो आज आप जो कर रहे हो, अगर ऐसे 2 लोगों को आपने सिखाया तो आपका 50,000 का इनकम फाइनल हो चुका है। ये इनकम अगर आपका टीम में 2 लोगों को ने अगर करना चालू किया, जैसे मेरे टीम में और हम करते हैं कौशिक सर के टीम में, मैं ये सिस्टम, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया, सिर्फ 5 महीना आपको लगातार करना है, हर टाइम करना है, हर टाइम आपको जोड़ना है। क्यों? आपका दिमाग वहां पे रहेगा, करोगे 2 घंटा लेकिन दिमाग 24 घंटा होना चाहिए, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कमाना है, क्योंकि आपके लाइफ में एक्स्ट्रा करना है। किस लिए करना है? क्योंकि आपको आपके फैमिली में आपको अलग खुद के सामने अलग बनना है। समय आ गया आपको खुद को आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी अपनाओ, देश बढ़ाओ। इसमें भी आपको एक भारतीय कंपनी को सबसे आगे बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, उसी के साथ कंपनी क्या दे रही है, 3 रात और 4 दिन का गोवा ट्रिप फ्री है, 4 अगस्त तक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एक संगठन बनाना है और आपके अंदर वो पावर है, आप कर सकते हो। आपको जिद लेना है, क्योंकि इस डिप्रेशन लाइफ में आपको टूर भी करना है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। 3 रात 4 दिन आपको गोवा जाना है और कंपनी में पूरा मजा करके आना है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा मजा आएगा जब साथ मिलके बहुत अलग कुछ करेंगे हम लोग। और ये आप कर सकते हो कहा? एक ही जगह, जहां आज रात अपने आप को 2 क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मैंने एक तीसरा क्वेश्चन मैंने कह दिया। 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। कौन सा 2 क्वेश्चन? आने वाले 24 घंटे में आज रात आप पेट भर के पानी पीना और सो जाना, सोकर फिर एकदम आधी रात को उठना और सुनसान होकर देखना कि आपकी फैमिली निश्चिंत है। क्यों करोगे आप बायोशैस? कारण ये की है कि आज आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपका एक दुकान भी है, कल आप नहीं हो तो कल ये दुकान चला सकते हैं? क्या वो आपका सर्विस कर सकते हैं? क्या वो प्रिस्क्रिप्शन एज अ डॉक्टर लिख सकते हैं? एज अ लॉयर क्या वो कोर्ट में वकालती कर सकते हैं? नहीं। यहाँ पे अगर आपने 5 महीने दे दिया, क्यों आप सीरियस बनोगे? क्योंकि आने वाले 5 महीने में आप एक अच्छा संगठन बनाओगे, आपको जाल बिछाना आ जाएगा, आप कुछ अलग सीख जाओगे, आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर लोगे। जैसे आपका संगठन कुछ करे और आप दुनिया में नहीं हो, यहाँ पे एक नॉमिनी फैसिलिटी होता है। जैसे मैं आज रात को मैं इतना एनर्जी क्यों लेता हूं? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेरा जीवन मतलब डेट ऑफ बर्थ मुझे पता है, डेट ऑफ डेथ नहीं पता है। आज रात को मैं कल सुबह नहीं उठा, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली के लिए अगर मेरे टीम वर्क मैंने अगर सही ढंग से सिखाया होगा तो वो बायोशैस के अंत दिन तक रहेंगे और वो जितना कमाएंगे उसका कमाई का एक फायदा मेरे अकाउंट में आएगा और मेरे फैमिली को कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। ये फैमिली सिक्योरिटी यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, बहुत सम्मान। यहाँ पे किसी को मैं नहीं जानता था, कोई मेरे यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं, मेरे लंबी उम्र की दुआ करते हैं, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं और ये कहते हैं कि सर अगर आप साथ रहे ना तो मैं दुनिया को कमाल कर दूंगा। ये मिलता है यहाँ पे हिम्मत कि मैं किसी के लिए भी हिम्मत बन पाता हूँ, ये सम्मान मिलता है। इसके लिए हम बायोशैस करते हैं, इसके लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें? क्योंकि मुझे यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिलेगा। आज मेरा 10 ऑर्गेनाइजेशन का टीम बन गया, इस महीने 10 लोग 1-1 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे। अगर मैं नहीं भी हूं मेरा 10 घंटे का काम होगा। आने वाले 6 महीने बाद मुझे 100 लोगों का टीम होगा, 100 लोग मुझे 1-1 घंटे का देंगे, मुझे 100 घंटे पर डे का काम होगा। इसलिए मैं नेटवर्क, क्योंकि टाइम फ्रीडम मुझे चाहिए। अगर मुझे पूरे भारतवर्ष की एंजॉय करना है, पूरे विश्व का एंजॉय करना है तो मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा। मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा और वो टाइम आपके पास नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको भी 24 घंटा दिया है, मुझे भी 24 घंटा दिया है। और इस घंटा में भगवान की ये कृपा देखो, वो घंटा तो दे दिया लेकिन हम घंटा भी नहीं करते, क्योंकि हम
सिर्फ कहते कि दादा पैसा नहीं है, दादा हिम्मत नहीं है, दादा कुछ नहीं है। सर, है तो बहुत कुछ आपके अंदर, लेकिन आप करोगे क्या? पहले वो तो सिद्धांत ले लो। आप करोगे क्या? करना वही है, क्योंकि हम एक ही बात कहते हैं कि जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना छेनी हथौड़ी के पत्थर भी भगवान नहीं होता। और ये छेनी हथौड़ी हमारे पास क्या है? ये कोविड है, ये लॉकडाउन है, ये अपॉर्चुनिटी है, ये बायोसैस आज हमारे पास है। इतने लोगों का आज फ्री ट्रेनिंग है। आज आप हमें नहीं जानते थे, फिर भी आज हमें सुन रहे हो। ये मौका आज आपके पास है दोस्त। क्यों इस मौके को चौका लगाना है? क्योंकि मुझे अलग बनना है। ये हिम्मत सिर्फ आपको दिखाना है। आप सिर्फ हिम्मत तो दिखाओ। ये फैमिली, इस फैमिली का नाम आप आज दिल से लगा लो। इस फैमिली का नाम है एसबीटी फैमिली, सुस्त भारत ट्रांसफॉर्मेशन। इस फैमिली का जो कर्णधार है ना, हमारे गुरुजी, परम प्रिय गुरुजी मिस्टर कौशिक मल्लिक जी, अगर वो ये नाम मेरे अपने डायरी में नहीं लिखते, उनके फोन पे अगर वो डायल नहीं करते, तो ये मौका हमें ना मिलता। और ना ही मौका मिलता तो आज ये सिक्योरिटी मुझे नहीं मिलता, ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता, इतने लोगों का प्यार नहीं मिलता, इतने लोगों का भरोसा नहीं मिलता, बायोसैस जैसा प्रोडक्ट नहीं मिलता, और मेरे फैमिली का लाइफस्टाइल नहीं चेंज होता। ये फैमिली मुझे देता है। क्यों ना करे माय डियर फ्रेंड, क्यों ना करे नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे आज 2 साल से लॉकडाउन में हर एक वीक हम कमाते हैं। क्यों ना करे, जहां पे यहाँ पे लोग रोते हैं कि मेरा जॉब नहीं है, मेरा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, और हम कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि हम ट्रैक सही हैं। आने वाले सेंचुरी की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में हम है आज। ये भरोसा तो आप करके देखो, कंधे से कंधे मिलाकर तो देखो, हाथों से हाथ बढ़ाकर तो देखो। हम आपको साथ लेकर आगे चलने वाले। एक छोटा सा दीमक आज एक पूरे पेड़ को काट सकता है। आप सोच लो, आप उस परिवार के सबसे बड़े हो, जो आने वाले सेंचुरी में सबसे ज्यादा आप ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, सबसे ज्यादा पैसा कमा सकते हो, सबसे ज्यादा आप सपना पूरा कर सकते हो। क्यों नहीं? क्योंकि इस दुनिया में ऊपर वाले ने अगर जो भी बनाया है, आपके लिए बनाया है। ये भरोसा तो करो। लेकिन कब करोगे? जब आपका ड्रीम होगा, ड्रीम, जब आपका डिजायर होगा, बर्निंग डिजायर, आपका दिल जलेगा, क्यों नहीं मैं कर पाया? क्या मैं लायक नहीं हूं अपने बेटे के लिए फुल टाइम डैड बनने के लिए? क्या मैं मॉम नहीं बन सकता, फुल टाइम मॉम? क्या खाना बनाने के लिए हम एक लोग नहीं रख सकते? क्या हम टूर पे नहीं जा सकते, वर्ल्ड टूर? क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास वो ड्रीम ही नहीं है। और कुछ तो लोग अभी मन में बोल रहे हैं, डायलॉग दे रहा है बेटा, डायलॉग। मैं यही बोला हूं, आप डायलॉग सुनो, और आने वाले 5 साल तक आप अपना डायरी लिखो कि आपके पास क्या क्या नहीं है, और मैं भरते जाऊं मैंने क्या क्या किया आने वाले 5 साल पे। आप किस में होगे? सिर्फ खोजोगे नहीं दोस्त, खोजना नहीं है, आपको खोजना है खुद के अंदर आपका पावर। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया, जिन्होंने आज आपको स्पॉन्सर किया, उनको बिलीव करना है। अपने लाइफ में 2 घंटे देकर सबका जीवन बदलना है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदलना है। ऐसे ही जीवन बदल चुके हैं। मैं कुछ दोस्तों के साथ आज आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ऐसा ही जीवन बदलने के लिए आज उनकी हिम्मत की दाद देंगे। ऐसे ही लोगों के साथ आज हमारा इंट्रोडक्शन भी होगा कुछ लोगों के साथ। तो आने वाले 5 मिनट अपने मोबाइल पे हाथ ना दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं होता है खुद को बदलने के लिए, और लोगों के पास कंप्लेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम होता है। देख, वो बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, अरे क्यों ना पहने? कपड़ा बना है बढ़िया, उनके लिए ही बना है, आप भी पहनो। क्यों जेलस करते हो? रुक जाओ 5 मिनट, देखो आपका हिम्मत और बढ़ा रहे। तो मैं अभी उनको वेलकम करना चाहूंगा। बहुत ही डैशी, बहुत ही क्रिएटर है, एकदम पुरुलिया से है। पुरुलिया माय डियर फ्रेंड्स, एकदम पुरुलिया से मिस्टर रमेश सर जी आज हमारे साथ हैं। और उनके अंदर क्या हिम्मत आया कि वो बायोसैस से क्या जीवन परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे साथ सुनेंगे। रमेश जी, आप हमें सुन पा रहे हो? फ्रॉम पुरुलिया, मिस्टर रमेश सर। मिसेस रिंकू दास मैम है क्या यहाँ पे प्रेजेंट? रिंकू दास मैम। यस सर। मैम आप थोड़ा हमें बताएं आज बायोसैस आपके जीवन के लिए क्या परिवर्तन लाया हुआ है, सबके लिए। ओवर टू यू मैम। रिंकू मैम, शायद मुझे आवाज नहीं मिल रहा है। हाँ, थैंक यू सर। मैम आप जहाँ पे हो थोड़ा আমি এসবিটি ফ্যামিলি
ফ্যামিলির প্রত্যেকজন সদস্য যিনি রয়েছেন রিঙ্কু ম্যাম, আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে না, আপনার একটু লোকেশনটা একটু চেঞ্জ করুন, একটু সরে যান ওখান থেকে, দেখুন সবাই শুনতে পাবে। হ্যাঁ স্যার, আমাকে শোনা যাচ্ছে? একদম, এবার আমাকে যেখানে শোনা আছেন যাচ্ছে ওখান স্যার? থেকে। একদম একদম, ওভার টু ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ স্যার। গুড ইভিনিং এসবিটি ফ্যামিলি। তো আমি অ্যাকচুয়ালি এখানে প্রফেশনাল স্পিকার তো স্যারেরা রয়েছেন, আমি তো একদম নতুন শিশু বলা চলে। আমি মার্চ মাস থেকে এই সিস্টেমে ইন্ট্রোডিউস হয়েছি। তো আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ অসংখ্য আপনাকে। আমি এই এসবিটি ফ্যামিলিতে নিজে কানেক্ট হয়েছি এই কারণেই, কারণ আমি একজন হাউসওয়াইফ। সেখান থেকে একটা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিতে যে প্রয়োজনটুকু সেটা মিটে যায়, কিন্তু আমাদের ছোটবেলা থেকে অনেক স্বপ্ন থাকে যেগুলো আমরা পূরণ করতে পারি না। অনেক সময় বড় হওয়া বাস্তবের সম্মুখীন হতে হতে আমরা আমাদের সেই স্বপ্নগুলোকে বস্তাবন্দি করে ফেলি। তো আমি এই সিস্টেম থেকে যে বিষয়টা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়েছে, আমি এই সিস্টেমটাকে ভালোবেসে জয়েন করেছি। কারণ এই যে স্যার বলেছেন বায়োস্যাস, মানে আমি আমার সুরক্ষা বলয়কে আমার সাথে নিয়ে এগোতে পারবো। তো সেটা হেলথ ওয়াইজ এবং ইনকাম ওয়াইজ। তো এই কারণেই আমি এই সিস্টেমে ইন্ট্রোডিউস হয়েছি, যে আমাদের অসুস্থতাকে কাটিয়ে এবং আমাদের পকেটের অসুস্থতাকেও কাটাতে পারবো, একজন মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির একজন কান্ডারি হতে পারবো, এবং আমি আমার নিজের আইডেন্টিটি তৈরি করতে চাই। তো সেই কারণে আমি এই সিস্টেমে জয়েন করেছি এবং আমার ভীষণ ভালো লেগেছে সিস্টেমটাকে, যে আমি আমার নিজেকে এবং ফ্যামিলির প্রত্যেকটা সদস্যকে সুস্বাস্থ্য দেওয়ার পরে আমি আমার কমিউনিটির জন্য, মানে আমার সারাউন্ডিং যে কমিউনিটি রয়েছে, আমরা আজকের ডেটে কেউ নিজের জন্য ছাড়া পরে অন্যের জন্য ভাবি না। এই সিস্টেম ভাবাতে শিখিয়েছে যে আমি নিজের ফ্যামিলিকে সেফ অ্যান্ড সিকিউর রাখার পরে আমার বাইরে যারা আমার সারাউন্ডিং রয়েছে, আমার ফ্রেন্ড সার্কেল, আমার রিলেটিভ সার্কেল, তো তাদের আমি সুরক্ষা কবচটা পড়াতে পারবো। তো সেই জন্যই আমি এই সিস্টেমে এসেছি এবং থ্যাংক ইউ সৌমিত, দীপক স্যারকে এবং কৃষ্ণেন্দু স্যারকে, যারা আমাকে এই সিস্টেমটার সঙ্গে ইন্ট্রোডিউস করেছেন এবং এই সিস্টেম থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না, তো নেক্সট আমরা চলে যাব শুভেন্দু মালিক স্যার। শুভেন্দু মালিক স্যার, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? Yes, sir. Good evening, sir. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওভার টু শুভেন্দু স্যার। Good evening, all SBT family and new guest কে। সবার আগে ধন্যবাদ জানাই সোমনাথ স্যারকে, কেননা আমাকে কিছু বলতে দেওয়ার জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাই আমার স্পন্সর স্যার কৃষ্ণেন্দু মালিক স্যারকে এবং আপলাইন স্পন্সর দীপক দলুই স্যারকে। তার আগে ধন্যবাদ জানাই আমি আমাদের যে এসবিটির মেন্টর মিস্টার কৌশিক মল্লিক স্যার এবং বেঙ্গলের যিনি হচ্ছেন বায়োসাসের ফাউন্ডার কৌশিক মল্লিক স্যারকে। কেননা বায়োসাসে আমি বেশি দিন আসিনি, মাত্র 6 মাস এসেছি। 6 মাসে এসে কিন্তু বায়োসাস থেকে অনেক কিছু স্বপ্নকে নিজের তৈরি করে নিয়েছি। যেমন হচ্ছে বায়োসাসের মাধ্যম দিয়ে আমি এই অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট পেয়েছি, যে প্রোডাক্টের মাধ্যমে কিন্তু আমি অনেক মানুষের সুস্থতা দিতে পারছি। এবং আমার লক্ষ্য হচ্ছে যে এই 6 মাসের মধ্যে আমি এসে যেটুকু শিখতে পেরেছি স্যারের কাছে, কৌশিক মল্লিক স্যারের কাছে, যে আমার যে ছোট্টবেলা একটা অর্গানাইজেশন তৈরি হয়েছে, তাদের মাধ্যম দিয়ে যেমন নিজের স্বপ্নটাকে পূরণ করতে পারছি এবং তাদের যেন প্রত্যেকটা স্বপ্নকে আমি পূরণ করতে পারি। এবং এই কোভিড সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু তাদের ইনকামকে আমি পাইয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু উঠে পড়ে লেগেছি। আর একটা লক্ষ্য হচ্ছে আমার, দ্বিতীয় লক্ষ্য হচ্ছে যে এই কোভিড সিচুয়েশনে যারা কাজ হারিয়ে ফেলেছে, অনেক নতুন গেস্ট আছেন এখানে, তারাও জানে যে অনেকজনের হয়তো কাজ নেই, সেই সব মানুষগুলোকে আমার সঙ্গে যুক্ত করে এবং তাদেরকেও ইনকাম করে দেওয়ার হচ্ছে আমার মেন উদ্দেশ্য, এবং তাদের ইনকামের মধ্যে দিয়েই কিন্তু এই স্বপ্নটাকে পূরণ করতে চাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার আপনার কথার মধ্যে একটা জিনিস খুব দারুণ লাগলো, সেটা হচ্ছে আপনি কাউকে যুক্ত করিয়েছেন। অ্যাকচুয়াল বেসিক্যালি ইন্ডাস্ট্রির একটা ভালো নাম আছে, বলে নামানো। তো আপনি আমাদের আজকের দিনে নামাননি, আমাদের সবাইকে যুক্ত করালেন আজকে এই এসবিটি ফ্যামিলিকে। ওয়ান্স এগেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। একটা গড গিফটেড ওয়ার্ড আপনার থেকে আজকে আমার নেওয়া এবং শেখা। সো নেক্সট আমি আজকের দিনে নেক্সট স্পিকারের সঙ্গে কথা বলবো,
যিনি অলরেডি আজকের দিনে আমাদের আজকে ইন্সপিরেশন হয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছেন, কারণ নিজেই একটা ইন্সপিরেশন। তো পরমা ম্যাম, আমরা কি পরমা ম্যামকে শুনতে পাচ্ছি? শোনা যাচ্ছে আমাকে স্যার? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে স্যার, গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। অনেকদিন বাদে আবার এসবিটি ফ্যামিলি সবার সঙ্গে আমার দেখা দেখা তো নয়, যাই হোক কথাই বলা। তো যাই হোক, সবাই ভালো আছেন আশা করি। আমি তো খুব ভালোই আছি। তো আমার ভালো থাকার যে মূল রসদ সেটা কিন্তু বায়োস্যাস আর এসবিটি ফ্যামিলি। ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছিলাম এটাই জেনে যে ভালো করে পড়াশোনা করো, স্ট্যান্ড করো, ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এর মধ্যে থাকো, ভালো জায়গায় জব পাবে, সরকারি চাকরি পাবে। কিন্তু আলটিমেটলি যখন মানে সমস্ত কোয়ালিফিকেশন গ্যাদার করলাম, কিন্তু আলটিমেটলি যা হলো কোনো জবই পেলাম না। তো স্বাভাবিকভাবে একটা ডিপ্রেশনের মধ্যে ছিলাম। তো সেই ডিপ্রেশন থেকে যাই হোক, সেই ডিপ্রেশন নিয়েই চলা জীবনে, যে আর হয়তো আমার দ্বারা কিছু হবে না। তারপরেই সংসার জীবনে চলে আসা। তো সেখানে অনেক রকমের স্ট্রাগল গেছে, অনেক রকমের প্রতিকূলতা পেরিয়েছি, এখনো যাচ্ছি সেই প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু গত বছর লকডাউনের টাইমে আমি মানে আমার লাইফের যে লাইফ চেঞ্জিং অপরচুনিটি যেটাকে বলা হয় সেইটা আমি পেয়েছি, আর সেটাকে আমি কোনো টাইম ওয়েস্ট না করেই কিন্তু গ্র্যাব করেছি। আর সেটা হলো এসবিটি ফ্যামিলিতে জয়েন করা। আমি কোনো রকম ভাবে রিগ্রেট করি না যে আমি এরকম একটা মানে কোনো নেটওয়ার্ক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। অনেকে বলে যে তুই এত ভালো পড়াশোনায় ছিলিস, তুই কেন এই কাজটা করছিস? আমি তাদেরকে উত্তরে এটাই বলি যে আমি নেটওয়ার্কার হিসেবে গর্ববোধ করি। হ্যাঁ, হয়তো আমি অনেকটা স্লো, কিন্তু আমি স্টেডিলি কাজ করতে পছন্দ করি। স্লো হতে পারি, কিন্তু আমি স্টেডি থাকতে পছন্দ করি। ঠিক আছে? তো সেই কারণে তারা যখন আমাকে বলে যে আমি নিজেও দেখি যে তারা হয়তো আমার থেকে পড়াশোনার দিক থেকে অনেকটাই বিলো স্ট্যান্ডার্ড ছিল, কিন্তু আজকে তারা ব্যাংকে জব করছে, কেউ প্রাইভেট সেক্টরে জব করছে। কিন্তু আলটিমেটলি এখন এই সিচুয়েশনে এসে দেখা যাচ্ছে যে তারাও কিন্তু তাদের জবের ক্ষেত্রে সিকিউর নয়, তারাও কিন্তু কোনো না কোনো অনলাইন বিজনেসের দিকেই ঝাঁপিয়েছে। তখন আমি শুধু মনে মনে ভাবি, আর এটাই মানে ওদের ব্যাপারগুলো মানে চিন্তা করি যে ওরা আমাকে যেভাবে ক্রিটিসাইজ করেছে, আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ওরাও কিন্তু বিভিন্ন রকমের নেটওয়ার্ক বিজনেসের দিকেই যুক্ত হচ্ছে। তো সেটাই আমি বলবো যে এখানে উপস্থিত যে কজন মহিলারা রয়েছেন বা আদার্স যে কজনই আছেন, সবাইকেই আমি এটাই বলবো যে নেটওয়ার্ক বিজনেস বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং কে কখনো ছোট নজরে দেখবেন না। এই একটাই সেক্টর কিন্তু আমাদেরকে আমাদের সমস্ত রকমের স্বপ্নকে পূরণ করতে সাহায্য করতে পারে। আমার তো করছে, আমি আরো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং লাইফ লং এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকবো। কারণ শুধুমাত্র মানে ইনকাম করাটাই যে মেন উদ্দেশ্য তা নয়, ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করাটাই মেন উদ্দেশ্য তাও নয়। সব থেকে বড় এখনকার সময় যেটা মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয়, আপনার যতই টাকা থাকুক না কেন, আপনার শরীরে যদি কোনো রোগ বাসা বাঁধে, তাহলে কিন্তু আপনার লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা থাকলেও কিন্তু সেই টাকার কোনো ভ্যালু থাকবে না। ঠিক সেই জায়গাতেই বায়োস্যাস আমরা এই কারণেই করছি যে বায়োস্যাস আমাদেরকে শারীরিক সুস্থতা যেমন দিচ্ছে, সেরকম পকেটের সুস্থতাও কিন্তু দিচ্ছে। মানে সেই রক্ষা কবচ আমাদের সঙ্গে রয়েছে বলেই কিন্তু আমরা আজকে এতটা হ্যাপি আর কনফিডেন্ট। তাই সেই কারণে আমি সবাইকে বলবো যে আর কোনো রকম সময় নষ্ট করবেন না, নষ্ট না করে আপনারা কিন্তু এই এসবিটি ফ্যামিলির সঙ্গে যুক্ত হন। কোনো দিনও ঠকবেন না আর রিগ্রেট করবেন না যে না, লাইফে আমি একটা ভুল ডিসিশন নিয়েছি। ধন্যবাদ। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये जो समा बना था ना, ये जो समा बना था, ये एक परिवार जैसा था, और आप लोग जो हमें परिवार थे, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ एक ही कहूंगा कि आप सभी अपने मिल नहीं पा रहे हैं, ये भी हमारा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज हमें मौका मिला है कि हम डिजिटली भी अपने साथ आपको समय दे पा रहे हैं, आप भी हमें डिजिटली समय दे पा रहे हो। ये जो डिजिटल वर्ल्ड बना है, तो इसके लिए एक ताली होना चाहिए। जितने भी लोग आज हमें सुन रहे थे उनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए। जितने लोगों ने प्रोडक्ट को शेयर किया उनके लिए भी एक ताली होनी चाहिए। जितने लोगों ने आज मुझे एज अ लीडर, एज अ स्पीकर जिन्होंने शेयर किया, इनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड, इन लोगों के लिए एक बार जोरदार रणनीति के एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये डिजिटल वर्ल्ड हमें इतना मौका दिया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। फ्रेंड्स,
अभी मैं जिनको सुनने जा रहा हूँ और मैं जिनके साथ काम करके बड़ा महसूस करता हूँ कि मुझे गर्व मिलता है। वन एंड ओनली द ग्रेट लीजेंड, द ग्रेट हीरो, और सबसे कम उम्र में सबसे अच्छा एक स्टैंडर्ड आज जो मतलब लाइफ स्टाइल जो लीड कर रहे हैं, जो आज एक सिर्फ फार्मर के घर से नहीं है, आज उनके पास खुद का एक गाड़ी है, 4 व्हीलर लाइफ लीड करते हैं, द हैंडसम, द डैशिंग। तो इनके लिए भी एक जोरदार तालियां होना चाहिए उनको सुनने के लिए। मिस्टर दीपक गोलवी सर को जोरदार तालियों के साथ उनका किया जाए। जोरदार जोरदार माय डियर फ्रेंड्स, जोरदार तालियों के साथ मिस्टर दीपक गोलवी सर। ओवर टू यू दीपक। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আজকে অসাধারণ একজন মানে স্পিকারকে আমরা শুনলাম। তো আমি সবাইকে একটুখানি বলবো যে সেই স্পিকারের জন্য যিনি এতক্ষণ ধরে আমাদের লাইফটা কিভাবে চেঞ্জ হবে উনি এতক্ষণ ধরে আমাদের সামনে শেয়ার করলেন, তো ওনার জন্য একবার জবরদস্ত হাততালি চাই, জবরদস্ত। থ্যাংক ইউ। ওকে, সো আমি জাস্ট 2-4টে কথা বলবো, সময় অনেকটা পেরিয়ে গেছি আমরা। আমাদের যারা এখনো আমাদের সেশনে আছেন, নতুন কেউ আছেন কিনা আমি জানি না, যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে দুটো কথা বলি। এতক্ষণ ধরে সবই শুনলেন, সবই আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনারা বলবেন ভালোই লেগেছে, কিন্তু আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে। তো চিন্তা অবশ্যই করবেন, কিন্তু আমি যেটা একটা জিনিস ভাবি যে আমাদের সিচুয়েশনটা আপনি একবার ভাবুন। এত বছর ধরে আপনি চিন্তা করে করে এত কাজ করেছেন, আজকের পরে যদি আপনি চিন্তা করেন, চিন্তাই তো আমরা সারা জীবন করে এসেছি, আর চিন্তা করতে 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 সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রত্যেকে। এই চিন্তা করা আপনারা ছেড়ে দিন, যা করতে হয় ড্রাইভ দিন। মানে একটা কথা আমি একজন বড় মানুষ তার উক্তি যে টেক এ ডিসিশন, মেক ইট পারফেক্ট। আপনি একটা ডিসাইড করুন, ডিসিশন নিন, সেটা যে ঠিক সেটাকে প্রমাণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ুন। আপনার পুরো তাকত দিয়ে আপনি পুরো একদম সবকিছু দিয়ে আপনি ঝাঁপিয়ে পড়ুন যে এটা আমার সঠিক ডিসিশন, এটার উপরে কাজ করুন। আর যদি আপনি চিন্তা করতে থাকেন, আপনি চিন্তা করবেন কিছুদিন পর আপনার ফ্যামিলি আপনার ফটোতে মালা দেবে, ঠিক আছে? আপনি আরো চিন্তা করবেন, আরো আপনার কাছ মানুষকে আপনি দেখবেন চোখের সামনে দিয়ে অনেককে আপনি হারাতে। মানে এই চিন্তা করার জায়গা থেকে বলছি, কত চিন্তা করবেন, কি চিন্তা করবেন? চিন্তা করার তো কিছু নেই এখানে। আর একটা বিজনেস যেখানে 5,000 10,000 দিয়ে শুরু করে, যেখানে আপনি লাখে ইনকাম করতে পারেন, যেখানে আপনার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে, যেখানে আপনি যা চান সেটা করতে পারেন, যেখানে আপনার কাছের মানুষটাকে আপনি সমস্ত সেরা জিনিসটা আপনি তার উপহার দিতে পারেন, আপনার বাচ্চাকে আপনি গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে আপনি ভালো কোনো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারেন, আপনার বাবা মার জন্য সেরা লাইফস্টাইল আপনি দিতে পারেন, আপনার বিদেশ ভ্রমণ স্বপ্ন সেটা আপনি বছরে 2 বার করতে পারেন, আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে যে কোনো সময় 5 স্টার 7 স্টারে গিয়ে কাটাতে পারেন। এই লাইফস্টাইল পাওয়ার জন্য এত কিসের ভাবনা? কিসের জন্য ভাবছেন আর কেন ভাবছেন? ভেবে তো আলটিমেট এতদিন কিছু হয়নি, ভেবে আপনি এতদিন কিছু করতে পারেননি, আর ভাবনার কিছু নেই। আপনি হয়তো ভাবছেন আমি কার কাছে যাব, আপনার কাছের মানুষটা আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পারে, রিফিউজ করতে পারে, আপনি আপনার বলা থামাবেন না। দোকানদার যেমন, আপনার কাজ হচ্ছে এখানে মানুষকে বলা, আপনার স্বপ্নের কথা মানুষকে শেয়ার করা, আপনি কি করতে চলেছেন সেটা মানুষকে শেয়ার করা, এই তো আপনার কাজ এখানে। এইটা বলে যদি আপনার স্বপ্ন পূরণ হয়, তাহলে হোয়াই নট? আপনার হতে পারে আপনার কাছের আপনার মামা আপনার সঙ্গে আসবে না, সাথ দেবে না আপনাকে, হতে পারে আপনার শালা আপনাকে সাথ দেবে না, আপনি ভেঙে পড়বেন। আপনি যদি ভেঙে পড়েন, আরে আমাকে আমার শালা আমাকে না বলে দিল, আমার কাছের মানুষ, আমি যার জন্য আমার ফ্যামিলির সঙ্গে রিলেশন ত্যাগ করেছি, সেই শ্বশুর বাড়ির সম্পর্কে শালা আমাকে না বললো। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, এর থেকে অনেক বেশি অপমান আপনি আপনার লাইফে হন, প্রতিনিয়ত হন। আপনার বিবাহ বার্ষিকীতে আপনি আপনার ওয়াইফকে কথা দিয়েছিলেন যে তোমাকে একটা দামি একটা ভালো গিফট দেবো, তুমি আমার সঙ্গে চলো, তোমার কি পছন্দ তুমি নেবে।
দোকান দিয়ে যেতে যেতে আপনার ওয়াইফের একটা পছন্দ হয়েছে একটা ভালো লাল কালারের শাড়ি, আপনার ওয়াইফের একটা পছন্দ হয়েছে, আপনি গিয়ে দেখলেন কি ও পিছন দিকে ঘুরে ট্যাগ, আমরা যেটা সাধারণত করি, দেখলেন 7,000 টাকা, আপনি বললেন এটা তোমার জন্য স্যুট করবে না, তুমি অন্য কিছু নাও। দিস ইজ আওয়ার লাইফ ফ্রেন্ডস। আপনার ওয়াইফ জেনে গেল যে আপনার ওই গিফটটা আমাকে দেবার মতো ক্ষমতা নেই, সাধ্য নেই, আমরা এটা অপমান নয়, এটাকে অপমানিত আমরা বোধ করি না, নিজেকে এটাকে অপমানিত বোধ করি না। আপনার বাবা মার শরীর খারাপ, হসপিটালাইজ করতে হয়েছে, আপনি কারো কাছে গিয়ে হাত পাচ্ছেন, মামা জ্যাঠা কাকা দাদু তাদের কাছে গিয়ে হাত পাচ্ছেন, আমাকে কিছু পয়সা দাও আমার বাবা মাকে চিকিৎসা করাবো, এটা আপনার মানে ইজ্জতে লাগে না, এটা আপনার ছোট হওয়া লাগে না। আপনার শালা আপনাকে না বলেছে বলে এটার জন্য আপনি ব্যবসা ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন, যে এটা ব্যবসাটা ফালতু ব্যবসা, এই ব্যবসাটা নাকি করা যায় না, মানুষের সঙ্গে রিলেশন খারাপ হয়। আর আপনি যাচ্ছেন আপনার বিপদে মানুষের কাছে টাকা চাইতে, সেটাতে আপনি বেইজ্জত হচ্ছেন, সেটাতে আপনার কোনো প্রবলেম হচ্ছে না। আপনার বাচ্চাকে আপনি গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়াচ্ছেন, সেখানে আপনি আপনাকে গর্ববোধ করছেন। একবার রিয়েলাইজ করুন, এই সবকিছু হওয়া সম্ভব। সারা পৃথিবীতে সোমনাথ স্যার বললো যে কাंधा देने के लिए भी 4 लोगों का जरूरत है। আমি আরো সহজ করে বলি, আপনি রাত্রিরে কাজ ছেড়ে রাত্রি 12টার সময় রাস্তা দিয়ে ফিরছেন, কুকুররা রাস্তার পাশে শুয়ে আছে, ঘেউ 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 করছে, আপনি ভাবছেন আমার লোক কোথায়, রাত্রি 12টার সময় ফিরছেন, কোনো লোক নেই, আপনার রাস্তাতে একটা কুকুর দাঁড়িয়েছিল, সে আপনাকে দেখে ঘেউ করছে, আপনি ঢিল মেরে তাকে তাড়িয়ে দিলেন, সেই কুকুরটা চলে গেল, চলে গিয়ে এসে পুরো ব্যাটালিয়ন ফৌজ নিয়ে এলো 10 জনকে, আর পুরো টিম এনে আপনার সামনে ঘেউ 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 করছে। আপনি একবার রিয়েলাইজ করুন, বিনা মতলবে বিনা কারণে রাত্রির 12টার সময় তার কোনো উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে সে একা চিল্লে যদি 10 জনকে ডাকতে পারে, আপনার কাছে তো সলিড কারণ আছে যে ইয়েস আমার লাইফে চেঞ্জ দরকার, আমার সেরা লাইফস্টাইল দরকার, যেভাবে বাঁচছে সেটা বাঁচা নয়। অ্যাকচুয়ালি আমরা ছোটবেলা থেকে ওই স্বপ্ন দেখতে না, আজকে বড় হয়ে স্বপ্ন দেখা ভুলে গেছি, স্বপ্নগুলো সব মানে দেখতে ভুলে গেছি, আমাদের দম শেষ হয়ে গেছে স্বপ্ন দেখার, কারণ আমরা যে নেগেটিভ অ্যাটমসফিয়ারে বড় হয়েছি সেখান থেকে আমাদের স্বপ্ন আস্তে 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 স্বপ্ন দেখতেই ভুলে গেছি। স্বপ্ন আবার ওই কোনো রকমের দিন গুজরা চলে যাবে, এইভাবে চলবে আমাদের লাইফ, তাহলে ঠিক আছে, জীবনটা শেষ হয়ে যাবে। আবার শেষ জীবনে এসে বলবো এই জন্মতে কিছু হলো না, পরের জন্য করবো, দেয়ালে ছবি হয়ে যাব, লোকে ফুল দেবে, একদিন কাঁদবে, তারপরে সবাই ভুলে যাবে। এমন কিছু কাজ করে রেখে যাই যেখানে আমার অ্যাটলিস্ট আমার নিজের ফ্যামিলিটা আমার মানে মরার দিনে সেলিব্রেট করবে বাড়িতে, যে এদিন আমি মারা গেছিলাম, দুঃখ প্রকাশ করবে, একটা শোক সভা আয়োজন হবে প্রতি বছর বছর, সেরকম কাজ অ্যাটলিস্ট করে যায় যেখানে মরে যাবার পরও মানুষ মনে রাখবে আমাকে, অ্যাটলিস্ট নিজের ফ্যামিলির লোক মনে রাখবে, তাহলে ফ্যামিলির জন্য কিছু করে রেখে যায়। সো আর মানে বিশেষ কিছু বলার নেই, আমি সবাইকে বলবো চিন্তা ভাবনা করার একটু সময় নেই। আমরা রেল লাইনের ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে আছি, আর সামনে আমাদের রাজধানী এক্সপ্রেস আসছে, আপনি কি চিন্তা করবেন? আপনাকে ডিসিশন নিতে হবে যে ইয়েস আমাকে ঝাম মারতে হবে, নাহলে আমাকে ট্রেনটা উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। সেই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা রিয়েলাইজ করতে পারছেন না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আপনার লাইফের প্রয়োজন, আপনি আজকে রিয়েলাইজ করুন, এছাড়া কোনো রাস্তা নেই। বায়োস্যাস আপনি যদি গায়ে মেখে নিতে পারেন, সেই বায়োস্যাস থেকে আপনার সমস্ত স্বপ্ন আপনি পুরো করতে পারবেন, সমস্ত ইচ্ছা আপনি নিজের পুরো করতে পারবেন, এবং বাড়ির সমস্ত ইচ্ছাকে আপনি পূরণ করতে পারবেন, করাতে পারবেন। সো আর বিশেষ কিছু বলার নেই, আপনারা আজকে ডিসিশন নিন, এক্ষুনি থেকে ডিসিশন নেই, এক্ষুনি থেকে প্ল্যানিং করুন আপনার আগামী পদক্ষেপ কি হতে পারে। সো উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, সবাই ভালো থাকুন। ওভার টু দ্য গ্রেট লিডার, ग्रेट स्पीकर, ग्रेट मोटिवेटर सोमनाथ सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत जबरदस्त न्यूज और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आपके साथ मिला। तो अब हम लोग सभी मतलब दोनों हाथ खड़े कर कर जहाँ पे हैं, वही हमारे परम गुरु, जो हमारे आज बंगाल फाउंडर, द ईस्टर्न फाउंडर, जो हमें हमेशा सिखाते हैं कि चलना कैसे है,
ढंग कैसा होना चाहिए, चलने में हमारा रंग कैसा होना चाहिए, और जीवन हमारा कैसा सुंदर होना चाहिए, और जीवन में हमें क्या क्या चीज हमें सुधारना चाहिए। तो जो चीज हमें अपने अंदर सुधारना है, क्योंकि खुद को सुधारेंगे ना तब दुनिया सुधरेगी, खुद को बिगाड़ेंगे तो दुनिया भी बिगड़ हुई। अब बिगाड़ेंगे ना सुधारेंगे, ये आपको ही निश्चय लेना है। तो ऐसे गुरु को हमें सुनना है, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उनको एक जोरदार क्या करना पड़ेगा सर, जोरदार सभी मिलकर ग्रेट लीडर द वन एंड ओनली आवर बिलवेड गुरु मिस्टर कौशिक मल्लिक सर, जोरदार ओवर टू आवर बिलवेड कौशिक सर। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আজকে মাইন্ড ব্লোয়িং প্রোগ্রাম, বিশেষ কিছু বলার নেই, শুধু এটাই বলবো যে আপনি যদি নিজেকে চিনতে চান তাহলে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসুন। প্রচুর নেগেটিভ আছে, নেগেটিভে ভর্তি। কারণ একটাই যে আমরা নিজেকে তৈরি না করে ইন্ডাস্ট্রি থেকে অনেক কিছু মানে চাইতে শুরু করি। বাট একটাই কথা যে ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে অনেক কিছু দিতে পারে যদি আপনি নিজেকে তৈরি করেন। অ্যাকচুয়ালি এটা সেলফ ডেভেলপমেন্টের ইন্ডাস্ট্রি। আর বায়োস্যাস কেন, তার কারণ পৃথিবীতে একমাত্র প্ল্যাটফর্ম, সারা পৃথিবীতে সেকেন্ড কোনো ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি নেই যাদের প্রোডাক্ট 15-16 বছর ধরে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে সাকসেসফুলি রান করার পর, সাকসেসফুলি টেস্টেড হওয়ার পর, তারপর ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে তার জার্নি শুরু নতুন করে। এরকম সেকেন্ড কোনো কোম্পানি আপনি ইন্টারনেটে খুঁজে ফেলুন, সারা পৃথিবী জুড়ে আপনি খুঁজে দেখুন কোন সেকেন্ড কোনো কোম্পানি আছে কিনা যে পৃথিবীর একদম প্রথম সারির দেশগুলোতে গত 15 থেকে 16 বছর, বিশেষ করে আমি বায়োস্যাসের কথা বলি, সোমনাথ স্যার অলরেডি বলেই গেছেন, আমেরিকা এবং কানাডার বুকে গত 16 বছর আগে থেকে এই প্রোডাক্ট চলছে, আজও বিক্রি হচ্ছে। এবং উই অল আর লাকি যে আমাদের দেশে সেই কোম্পানি জার্নি স্টার্ট করেছে ডাইরেক্ট সেলিং এর থ্রুতে। এবং আমরা একদিকে তো সুস্থতা দিতেই পারি, আপনারা বহু বন্ধুদের কাছ থেকে শুনলেন, পাশাপাশি যেটা দিতে পারি সেটা হচ্ছে নিজের অকাত। আমরা নিজের অকাতকে সেটা প্রুভ করে দেখাতে পারি নিজের কাছে, নিজের ফ্যামিলির কাছে, সোসাইটির কাছে, সারা দেশের কাছে, সারা পৃথিবীর কাছে। অনেক অনেক কিছু অপেক্ষা করছে। ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল বড় ক্রেজ আসতে চলেছে। আপনাকে নিজেকে তৈরি করতে হবে, আর সেই তৈরি করার জন্য এসবিটি ফ্যামিলি আপনার সঙ্গে সব সময় আছে। আমরা সবাই আপনার সঙ্গে আছি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমাদের ট্রেনিং ইভেন্ট চলে এবং তার পাশাপাশি আরো অনেক কিছু আমরা আনতে যাচ্ছি। এবং আমাদের এন্টায়ার অর্গানাইজেশনের প্রচুর লিডাররা তারা ডেডিকেটেড আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন একটাই, আপনি কি চান? যদি আপনি সত্যি সত্যি চান তাহলে আজ এখন থেকে শুরু করুন নতুন করে। আমি সমস্ত এসবিটি ফ্যামিলি মেম্বারদেরও বলবো এখন থেকে আবার নতুন করে, যেটা আমি সব সময় বলি, প্রতিদিন একবার নতুন করে বায়োস্যাসে যুক্ত হন। আর নতুন বন্ধুরা যদি কেউ এখনো থাকেন, আমি বলবো একটু আর সময় নষ্ট করবেন না, কারণ আপনার লস যাওয়ার কিছু নেই। আপনি যদি কাজটা নাও করতে পারেন তাতেও আপনার লস যাওয়ার কিছু নেই। যদি আপনি নিজেকে তৈরি করার সিদ্ধান্ত না নেন সঠিকভাবে, তাহলে অবশ্যই আপনি পারবেন না যে গল্পগুলো আপনি শুনলেন এতক্ষণ ধরে। যদি আপনি মনে করেন যে খুব তাড়াতাড়ি বিশাল বড় কিছু হয়ে যাবে, তাহলেও হবে না, কারণ পুরোটাই ডিপেন্ড করে আপনি সেলফ ডেভেলপমেন্ট কত ফাস্ট, কত স্পিডে করছেন এবং যারা আপনার সঙ্গে যুক্ত হবেন। এই যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রচুর 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 নেগেটিভ আপনাকে ফেস করতে হতে পারে। কারণ একটাই, যদি এই নেগেটিভ ফেস যদি আপনি না করেন তাহলে কিন্তু আপনার সাকসেস লং টার্মের নয়। আর তার জন্যই আমরা যারা সিরিয়াসলি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত, আমরা সবাই মানে সব সময় চাই যে অনেক বেশি করে নেগেটিভ আমরা যেন অন্তত ফেস করি, কারণ আমরা ফেস করেছি বলেই আপনাদের সেই ক্ষেত্রে গাইডও করতে পারবো। একই রকম ভাবে আপনি ফেস করে যদি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে আগামী দিন আপনার অর্গানাইজেশনকে আপনি গাইড করতে পারবেন। কারণ ইচ অ্যান্ড এভরি নেগেটিভ আপনাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যায়। ওকে ফ্রেন্ড, তো চলুন আজকে আমি বেশি কিছু আর বলছি না। আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে যুক্ত হয়ে যান যদি নতুন কেউ থাকেন। আর বাকি সব বন্ধুদের সঙ্গে তো দেখা হচ্ছেই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা। তো অল দ্য বেস্ট। একটা কথা বলতে পারি? কি বলছেন? তারক বিস্তার। হ্যাঁ বলুন স্যার। স্যার বায়োস্যাসের জন্য জীবন লড়িয়ে দেবো, এটাই আমি বললাম, আর কিছু একটাই কথা বলবো। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার। যতদিন বেঁচে থাকবো বায়োস্যাসের জন্য জীবন লড়িয়ে দেবো। আমরা আছি সঙ্গে স্যার আপনার। বাস
এটাই আমি আমি ঠিক আছে, আমি একদম প্রাণপণ দিয়ে আমার কমিটমেন্ট। একদম। মানে এই কমিটমেন্টটা কারোর কাছে করতে হবে না, আমি সবাইকে বলবো নিজের কাছে করুন। কারণ বায়োসেস শুধু ইনকামের রাস্তা নয়, বায়োসেস আপনার ফ্যামিলিকে মেডিসিন ফ্রি লাইফ এনজয় করানোর একটা বিশাল বড় রাস্তা। অন্য হাজার একটা সোর্স থেকে আপনি কোটি কোটি টাকা রোজগার করতে পারেন, কিন্তু সেই টাকা কোনো কাজেই লাগবে না যদি আপনি এবং আপনার ফ্যামিলি সুস্থ না থাকেন। আর কিছু নয়। ওভার টু সোমনাথ স্যার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি এটাই বলি যে এটা আমার অনার যে আমি এখনো পর্যন্ত কথা বলার সুযোগ পাই। আর আমি সবাইকে একটা কথা বলি, সুযোগ কেউ দেয় না, তৈরি করতে হয়। সুযোগ কেউ দেয় না, তৈরি করতে হয়। শেষে ইয়েস স্যার, তারাই ইয়েস কথা, স্যার। সুযোগ যে করে সে তৈরি করে, আর যে কথা বলে তার কথা বলার জন্য যোগ্যতা করে, তার জন্য তাকে পরিশ্রম করতে হয়, তাকে জাল বেছাতে হয়। আর বড় জাল টানতে গেলে তাকে ওয়ার্ক করতে হয়, पसीना निकालना है। तो আমার বাড়িতে বলে अगर हसीना देखना है तो पसीना निकालो, अगर गोवा चलना है तो 4 तारीख तक अपना खून लगा दो, अपना दिमाग लड़ा दो। বস সবাই পারি, আমরা সবাই পারি, আমরা সবাই পারি, এসবিডি ফ্যামিলি পারি। আমরা খান্না স্যারের কাছে প্রাউড ফিল করাতে এই এসবিডি ফ্যামিলিকে আমাদের প্রত্যেকের এটা দায়িত্ব। এসবিডি ফ্যামিলির একটা প্রত্যেকটা অর্গানাইজেশনের প্রত্যেকটা সদস্যের একটা বড় দায়িত্ব যে আমরা আগামী 4 তারিখ পর্যন্ত নিজেদের যে গরম করার ব্যাপারটা আছে, আমরা যখন ওই একসাথে যাব, খান্না স্যার আমাদের দেখে আমাদের যেন প্রাউড ফিল করে, উই আর এসবিডিয়ান্স। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডস। খুব ভালো থাকবেন, খুব ভালো আছেন আমি জানি, সারা জীবন এইভাবে স্যার থাকবেন। জি স্যার। বলছি স্যার 1 মিনিট কিছু বলার সুযোগ পাবো স্যার? আপনি যদি কথা বলতে জানেন তাহলে সুযোগ আপনার, বলুন স্যার 1 মিনিট। সবাইকে গুড ইভিনিং। একটা অভিজ্ঞতা, বিগত দিনে আমাদের সঙ্গে কাজ করতেন একজন আয়ুর্বেদের মাস্টারমশাই মানুষ, খুবই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, বাট উনি দীর্ঘদিন আমাদের বায়োসেসের সাথে যুক্ত নেই। হঠাৎ পরশুদিন আমাকে ফোন করে, কুন্তল কেমন আছো? আমি বললাম খুব ভালো আছি স্যার আমি। তো বলছে আমার একটা তুলসী খুব দরকার ছিল, কি দিতে পারবো? আমি বলছি স্যার আপনি বললে 1 টাকা না, আমি 100টা পৌঁছে দেবো। বলছে না না, তাহলে আমি কালকে তোমার বাড়িতে আনতে যাবো। মানে আমার বাড়িতে মোটামুটি 15 কিলোমিটার। বললাম স্যার একটা তুলসীর জন্য আপনি এত দূর আনতে আসবেন? তো আমি আপনাকে কালকে যাবো ওইদিকে, আমি আপনাকে পৌঁছে দেবো। তো জাস্ট আমি আজকে বাস থেকে নামলাম, আপনি জানেন কোথায় গেছিলাম, সেখান থেকে বাস থেকে নামছে, আমাকে বারবার ফোন করছে কোথায় আছো কোথায় আছো। আমি বললাম এই বাস থেকে নামছি, মুচিপাড়ায় নামবো। উনি বলছেন তাহলে আমি মুচিপাড়াতেই চলে যাচ্ছি ওইটা নিতে। তো আমরা এসে দেখি উনি অলরেডি দাঁড়িয়ে আছেন, 2টো তুলসী, একটা ফেস ওয়াশ। তো এটাই বলার যে যারা আজকের দিনে বায়োসেস ছেড়ে অন্য কিছু করছে, আমাদের কাছে আমরা খুব লাকি যে আমরা রাইট ট্র্যাকে আছি, যেখানে সেই মানুষগুলো আবার ফিরে এসে আমাদের কাছে কোনো প্রোডাক্ট চাইছে। শুধু তাই নয়, এমন একজন মানুষ আছেন, উনি তার নিজের ফ্র্যাঞ্চাইজি আছে, কিন্তু কিভাবে খুলবে, যেহেতু আমাদের নতুন সফটওয়্যার আপডেট হয়েছে, উনি পাচ্ছেন না। সেখানে আমাদের তারক স্যারের কাছেও প্রোডাক্ট চেয়েছে, তারক স্যার বলেছে আমি প্রোডাক্ট দেবো কিন্তু বিবি দেবো না। আরেকজন আছে, উনিও ফ্র্যাঞ্চাইজি ওনার, বাট ওনার কাছে কোনো প্রোডাক্ট নেই। উনি আমাদের রবিন স্যারের কাছে পেস্ট নিচ্ছেন, তুলসী নিচ্ছেন। তো এটাই আমি মানে আজকের দিনে লাকি, মানে খুব নিজেদের আনন্দিত, মানে গর্বিত যে আমাদের কাছে যারা হারিয়ে যাওয়া মানুষ, তারা বলছে আমি বাড়ির জন্য শুধু এইটা, বাড়ি এই প্রোডাক্ট ছাড়া ইউজ করে না, বাট আমি অন্য কিছু করি, সেই প্রোডাক্টটা লোককে ইউজ করাই, অর্থাৎ লোককে টুপি পরাই, লোককে বাজে মাল খাওয়াই, ঠিক আছে আমার ইনকামের জন্য, বাট আমি বাড়িকে সুস্থ রাখার জন্য যেন বায়োসেসের প্রোডাক্ট খাই। তো থ্যাংক ইউ সবাইকে। থ্যাংক ওভার ইউ টু স্যার, সোমনাথ থ্যাংক স্যার। ইউ। জয় বায়োসেস, জয় বায়োসেস, জয় বায়োসেস, জয় বায়োসেস, জয় বায়োসেস। सर मजा करना है तो साथ मिलके करना है, और अगर दुनिया हिलाना है तो यही से करेंगे सर। কারণ স্যার বলছি একটাই। যে আমাকে 10টা পেস্ট চাই, ফেস ওয়াশ চাই, ইন্টিমেট ওয়াশ চাই। ওকে আমার স্যার, ওকে স্যার, আপনার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। লিস্ট নেই, আমরা এটাই গর্বিত, এটা শুনেও আমরা গর্বিত। যারা সঙ্গে আছেন তাদেরকে আমরা এখনো সঙ্গ দিতে পারছি, কারণ আমরা সঠিক ট্র্যাকে আছি। আগামী দিন ওয়েট করুন, কি থাকবে আর কি থাকবে না, আর কে কে থাকবে আর কে কে গড়বে।
আমি সবাইয়ের ক্ষেত্রেই একটাই ইনফরমেশন দেব, এটাও আমাদের খুব জানার দরকার। ফ্রেন্ডস, যারা এই মুহূর্তে আছি, শুধু 4 তারিখ পর্যন্ত গোয়াটাকে শুধু একবার ট্রিপটাকে এনজয় করে দেখিয়ে দিন, ওই ফটোটা আপনার লাইফ চেঞ্জ করে দেবে, এটা আমি কথা দিতে পারি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। দারুণ ইনকাম করুন, এই সপ্তাহতেই 1500 টাকা ইনকাম করুন, কারণ বৃহস্পতিবার আপনাকে কথা বলতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, সবাই সুস্থ থাকবেন, জেদ করুন, কারোর উপর রাগ করবেন না, জেদ করুন, নিজের উপর জেদ করুন, নিজের উপর রাগ করবেন না। সো ফ্রেন্ডস, খুব ভালো থাকবেন। আজকের আড্ডা এখানে শেষ করে বৃহস্পতিবার সবার সঙ্গে দেখা হচ্ছে। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট, উইশ ইউ আ হেলদি এসবিডি ফ্যামিলি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, যে যার মতো লেট হয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।